है ना? Okay. Call is now being recorded. Yeah. Good afternoon, everyone. Sorry for the little delay. So in the last session, we had seen indoor plants and a few things about gardening, like introduction to gardening was done. Now, in this session, I'm going to tell you about the outdoor plants, outdoor trees, and basic things you have to do while you're designing your garden. And also, I'll be telling you about the pests and diseases. Okay. So I will start sharing the PPT. So can everyone see the PPT? Can everyone see the slide? Yes. Yes, No, yes. ma'am. Make it Yeah. full screen. Yeah, we can see the slides. Okay. No, madam. We cannot. Slides आहेत ना? Many of us can see, so there must be some problem with the Yes, person. individual. Please check with the individual net problem. Okay, because it is visible. The वरती slides are पिनवर there. पिनवर क्लिक करा म्हणजे प्रेझेंटेशन दिसेल. Individual issues जे आहेत ते check करा थोडेसे. Because slides are visible. Visual. Okay. So selecting outdoor plants. हम जब आउटडोर प्लांटेशन करते हैं, व्हाट इज आउटडोर प्लांटेशन? लाइक वी प्लांट द ट्रीज विच मींस अब हमने पिछली बार इंडोर प्लांट्स के बारे में देखा. तो फॉर इंडोर प्लांट्स वी नीड सेमी शेड एरियाज और शेडी एरियाज. लाइक दिस इज जस्ट अपोजिट टू दैट. आउट धूप में they grow in the sunlight. They need proper sunlight, water and everything to grow. So what are outdoor plants? Like how many, what types of outdoor plants are there? There are roadside trees. We can plant roadside trees. Roadside trees are up to 20 feet they of height. The recording has started actually. Dhanashri madam. Yes. Okay. So I'll be telling you about roadside trees which will grow up to 20 feet height. Then tall or large trees which will grow up to 40 feet. Then again small and medium sized trees, flowering trees, fruit trees, shrubs, special effect plants, ground cover. These all are necessary when you are going to plan a garden. Like if your garden is big enough, then you can plant big trees, tall trees. Otherwise, or small, medium trees, flowering trees. You can choose whatever from this options. You can choose which plants you want to plant in your garden. So roadside trees are like as I said, up to 20 feet height. These are some few ये हम रोड के साइड से कहीं भी एंट्रेंस है, बड़े फैक्ट्रीज का एंट्रेंस है शायद, नहीं तो बड़े इंस्टीट्यूट्स का एंट्रेंस है, तो देर आर रोड्स everywhere. So just beside the road you can plant these trees. They don't grow more than 20 to 25 feet, so you can plant these trees. और एक जैसे trees plant करेंगे हम, राइट साइड को कैशिया फिस्टुला दिख रहा है, महावा बोलते हैं जो हम, और से गोल्डन शॉवर प्लांटेशन किया तो एक जैसे फ्लावरिंग जब आता है उनको, तो इट लुक्स वेरी नाइस. द लैंडस्केप लुक्स वेरी नाइस when you plant similar types of trees in a line. Then this
The first is like pride of India, we say Jarul. This is the state flower of Maharashtra पण म्हणतात आपण मराठीमध्ये त्याला. तर ह्याला पिंकिश व्हायलेट कलरची फुलं असतात. अँड this is Taman. This also you can plant in the same form. Then again we have Astonia solaris, means devil's tree. Saptaparani we call it. Saptaparani. They have this white color flowers जो आते हैं उसको. Then again बहुइनिया जो बोलते हैं हम, पिंक कलर के होते हैं, व्हाइट भी होते हैं. तो दिस इज लाईक पर्पल ऑर्किड ट्री. कांचन, कांचन मराठीमध्ये म्हणतात, कंचनार पण म्हणतात. तर हे सगळे रोड साइड ट्रीज आहेत. यू कॅन चूज while you want to plant trees at the roadside, you can choose from these. Other roadside trees are like bottle brush. Bottle brush भी दिखने को बहुत अच्छा दिखता है. You can just go on planting this. Then again टेबुबिया varieties are there. टेबुबिया ये पिंक भी है, पिंक है वो भी टेबुबिया है, येलो भी टेबुबिया है. तो दिस प्लांट्स they flower in seasonal flowering है इनका, लेकिन when they flower they look very good. ये पाम के varieties है. ग्लिरिसिडिया जो बोलते हैं, गिरिपुष्प हम बोलते हैं मराठी में उसको. इसको भी पिंक कलर का फ्लावरिंग आता है. एंड दीज आर यूजुअली दिस खेत रहते हैं. दे प्लांट, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे प्लांट बाउंड्री में प्लांट करते हैं, खेत जहाँ होता है वहां, क्योंकि दे डोंट वांट बर्ड्स एंड insects to harm their plants. इनके जो leaves होते हैं they are इनके this Gliricidia गिरिपुष्प जो है उनके their leaves are toxic, so birds and insects don't come on this plant. When farmers don't want birds or insects to harm their field, तो ये गिरिपुष्प लगाते हैं. This is actually it's not an Indian origin plant, but very much grown in abundance in India nowadays. तो ये और है जो टेम्पल ट्री हम बोलते हैं, चाफा नीचे. देन पांगेरा, एरिथ्रिना इंडिका जो है वो पांगेरा बोल के है. ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावरिंग all these trees have. So these are some of my favorite plants I have shown. आप और भी बहुत सारे लगा सकते हैं. पाम की वैरायटीज भी बहुत, पाम भी आप लगा सकते हैं. एवेन्यू प्लांट्स भी बोलते हैं इनको, जब हम एक जैसे बोथ साइड्स से प्लांटेशन करते हैं तो. एंड दिखने को भी बहुत अच्छा दिखता है. देन अगेन वी ऑल नो दैट banyan trees and all, they are very huge trees, like huge trees. If you want to plant huge trees, then you can go for rain trees. Rain trees जो रहते हैं बहुत trunk size भी बहुत होता है, भी बहुत बड़ा होता है. तो these give very good shade. शेड भी बहुत अच्छे देते हैं. तो these are rain trees. ये सब गुलमोहर आप सबको पता है, Dilonix regia. तो गुलमोहर भी बहुत अच्छा दिखता है when once it flowers. Then स्पैथोडिया जो है अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री या फाउंटन ट्री बोलते हैं. कारंज वृक्ष इन मराठी वी कॉल इट, किंवा पिचकारी पण म्हणतो आपण. ऑरेंज कलरचं फ्लावर दिसतंय तुम्हाला इथे ते. हे ट्रीज आहेत आणि त्याच्या साईडला त्याचं फ्लावरिंग दाखवलेलं आहे. दीज आर बिग ट्रीज अँड यू कॅन सी the flowering of those trees. So this, and the flowering is like this. This is Melantinia hortensis, white color, which at the bottom right side bottom you can called Indian cork tree. बुचाची फुले असं इंग्लिश मध्ये म्हणतात, और you call it आकाश नीम in Hindi. You must have seen all these trees. And here left side को पेल्टोफोरम है, कॉपर पॉट जो बोलते हैं, येलो. So these all are flowering trees and huge trees actually, above 40 feet of height. ये again there is one रान भिंडी हम बोलते हैं जो Thespesis acutuloba, तो वो भी है. These plants are huge size. So if you want to
प्लांट आपकी नीड है ह्यूज प्लांट की, तो यू कैन गो फॉर दिस प्लांट्स. अगेन वी हैव कैजुरीना, सुरु जो सुरु बोलते हैं हमको, मोस्टली बीच साइड पे दिखाई देते हैं सुरु. वी हैव बिग बिग plantations of casuarinas. You can go for this. Then ficus banyan tree, as I said, all the ficus varieties like word, pimper, then umber. These all are ficus varieties. So you can plant these also. These are all huge trees. These trees, word, this Ficus religosa is pimple. Then Ficus racemosa is umber, cluster fig also we call it. Then again eucalyptus trees, नीलगिरी बोलते हैं. Ficus elastica means rubber plant हमने देखा है. So these all are huge trees, like large, tall trees. Then again small and medium sized trees. ये मैंने साइज के हिसाब से बाइफरकेट किए हैं, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग लैंडस्केपिंग और व्हेन यू आर प्लानिंग अ गार्डन, तो आप बीच में ही ऐसे टॉल प्लांट लगा नहीं सकते. व्हेन यू बाय अ प्लांट यू शुड नो हाउ यू कैन प्लान योर गार्डन अकॉर्डिंगली. जो बाउंड्री में है वहां हम टॉल प्लांट्स लगाते हैं. देन उसके नीचे हम थोड़ा छोटे उससे छोटे, देन अगेन मीडियम, देन स्मॉल एंड देन ग्राउंड क्रीपर्स. इसीलिए मैं उनका साइज वाइज बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप जब प्लांट खरीदेंगे तो यू शुड नो हाउ टॉल दैट प्लांट इज गोइंग टू ग्रो. देन स्मॉल varieties and medium varieties are like कामिनी जो बोलते हैं, फर्स्ट दिखाया है मैंने. तो कामिनी, मुराया एक्सोटिका बोलते हैं उसको, कामिनी है. कैशिया बायफ्लोरा है. देन अगेन यूफोरबिया कॉन्टिनोफोलिया है. बिग रेड ऑक्सालिस बोलते हैं कॉमन नेम उसका, इसके लिए अच्छे लगते हैं. whenever you are planning a garden, थोड़ा सा मोनोटोनस ग्रीन ही कलर नहीं रखना चाहिए. these are varieties of color variations थोड़े रहने चाहिए उसमें. तो these are all plants which you can plant in your garden also. जब big garden if you are planning, then you can plant these plants. Cassia biflora है, these have yellow flowering. यहाँ पे बीच में येलो और रेड जो दिख रहा है वो ओकना वैरायटी है, ओकना सेरुलेटा बोल के. मिकी माउस प्लांट भी बोलते हैं इसको. तो एट अ टाइम इसको येलो एंड रेड फ्लावर्स आपको, these are some plants. then अनंत बोलते हैं हम, ये नीचे है वो, गार्डनिया भी बोलते हैं उसको, कॉमन नेम है उसका. और ये पर्पल जो दिख रहा है वो ड्यूरांटा, जो ग्रीन कलर का राइट साइड में दिख रहा है वो ड्यूरांटा के फ्लावर्स है, पर्पल. So these are some varieties of small and medium sized trees. Then fruit trees आप सबको पता है, ज्यादा बोलूंगी नहीं मैं fruit trees के बारे में. थोड़े यहाँ दिखाया है वो मैंगो है, स्टार फ्रूट है ये राइट साइड को, नीचे है वो लीची है, जैक फ्रूट है. फॉर वेरियस फ्रूट ट्रीज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, पेरू लगा सकते हैं, गावा, कैशूनट लगा सकते हैं, टैमरिंड, व्हाटएवर, आंवला वगैरह सब आप फ्रूट ट्रीज में लगा सकते हैं व्हेन यू वांट टू गो फॉर फ्रूट ट्रीज. फ्लावरिंग ट्रीज अगेन वही है, ट्रीज में जो बोलते हैं बड़े ट्रीज में जो फ्लावरिंग ये वो एक पहला दिखता है वो सीता अशोक, मैंने नक्षत्र वन में आपको पिछले सेशन में बताया था वो है. तो उसका हमने अभी टॉल ट्रीज में देखा वो बुचाची फुलं, पण आकाश नीम जो है वो है. देन अगेन प्लुमेरिया इज देयर, प्लुमेरिया चाफा जो है, प्लुमेरिया में भी बहुत से कलर्स रहते हैं, रेड, पिंक, येलो, व्हाइट, एंड लुक्स वेरी नाइस. इट ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग में बहुत ये आ जाता है उसको, गुड़ी पाडव्याला आपण घालतो, ती ह्याची व्हरायटी आहे. देन अगेन गोल्डन शावर यू कैन सी एट द लेफ्ट. You can go for these all plants. Now shrubs. Shrubs are little smaller ones from the medium and small these. Madam, So we can't hear you at all. sorry, you can't hear?
Hello, am I audible to Ma'am is everyone? audible. Yes, ma'am. Yes. ऐकू येतंय. Okay. कंटिन्यू दीपा. So, yeah. बाकीच्यांनी माइक्स ऑफ ठेवायचे, व्हिडिओ ऑफ ठेवायचे. अदर्स प्लीज म्यूट युअर माइक्स. श्रब्स म्हणजे स्मॉलर प्लांट्स जो ग्रुप में लगाते हैं हम, एंड इट हैज अ बुशी लाइक बुशी ये रहता है उसका फॉलिएज, तो वी कैन यूज एक जैसे लगाए तो इस फोटोग्राफ्स में जब दिखा है एक जैसे लगाएंगे श्रब्स तो बहुत अच्छा दिखता है। तो कौन कौन से श्रब्स आप यूज कर सकते हैं आपके लैंडस्केपिंग में या गार्डन में? वैरायटीज अकालिफा वैरायटी है जो राइट साइड को ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, ये जो क्रोटन्स है ऊपर, देन अगेन राइट साइड डाउन देर इज कोलियस, देन लैंटेना है, ब्रुनफेल्सिया है, ये सब आप गूगल अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट एंड यू कैन फाइंड देम। तो ये सब प्लांट्स आप, राइटिया रेलिगोसा भी है, व्हाइट कलर के रहते हैं, लैंटेना यू कैन सी, देन अ फ्यू प्लांट्स आई हैव मेंशन्ड हियर। तो ये वैरायटी लगाएंगे तो फ्लावरिंग के बाद भी अच्छा दिखता है गार्डन आपका, और लीव्स, क्रोटन्स के लीव्स बहुत कलर्स में आते हैं, तो यू कैन जस्ट वो मोनोटोनस ग्रीन कलर रहता है वो नहीं रहेगा। योर गार्डन लुक्स मोर लाइवली व्हेन देयर इज व्हेन इट इज कलरफुल। अब स्पेशल इफेक्ट प्लांट्स हम जब गार्डन डेवलप करते हैं तो कहीं तो फोकल पॉइंट रहता है, तो फोकस जहाँ पे रहता है, तो फॉर दैट यू कैन यूज दिस स्पेशल इफेक्ट प्लांट्स। यू कैन दीज आर साइकस जो राइट साइड को ये किया है, वो रॉक्स है वहां पे, साइकस एक ही साइकस लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखता है। that will be the focal point in your garden. Then Zamia नीचे है, Zamia is also like cactus succulent, ये साइकस जैसा है वैसा ही है, अगेव है उसके पास, तो वो आप लगा सकते हैं। रसेलिया राइट साइड पे है, वो हेलिकोनिया जो बोलते हैं हम, ऊपर जो दिख रही है हेलिकोनिया है, रसेलिया यूज कर सकते हैं। ये जो एक जैसे दिखाए हैं वो सब जुनिपर्स है, तो इसमें से आप ये अल्पिनिया भी आप यूज कर सकते हैं, जिंजर लिली वो भी बोलते हैं इसको, बर्ड ऑफ पैराडाइज रहता है, ये जो सब प्लांट्स है, दीज आर ऑल स्पेशल इफेक्ट प्लांट्स। तो यू हैव टू रिमेम्बर, जब गार्डन प्लान करेंगे तो फोकस कहीं तो कॉर्नर में रहेगा या बीच में रहेगा, तो यू कैन प्लांट ऑल दीज प्लांट्स। अब श्रब्स हो गए, ये स्पेशल इफेक्ट प्लांट्स हो गए। अब ग्राउंड कवर के लिए जो स्मॉल बहुत स्मॉल ग्राउंड कवर के लिए जो यूज करते हैं प्लांट्स हम, वो है यहाँ पे दिखा है वो सिंगोनियम पिलिया वगैरह, मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। दो दे आर शेडी, यू कैन प्लांट देम आउटसाइड बिलो अ बिग ट्री, मीन्स ट्री का शेड जब पड़ता है तो उसके नीचे आप लगा सकते हैं। और ये जो है अल्टरनेथरा रेड, और ये इनको जो कलरफुल है या और फ्लावरिंग के जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इन सबको धूप लगती है, सो दे फ्लावर एंड गिव कलरफुल फ्लावर्स। तो इसमें से एप्चिया कॉर्डिफोलिया है, अल्टरनेथरा है ये रेड कलर का, वडेलिया है ये जो येलो कलर का है वो, स्टेनोटेफ्रम है, ये जो ग्रास दिख रहा है वो, सिंगोनियम पिलिया मैंने यहाँ मोन्डोग्रास है, ये राइट साइड को बिग ये दिख रहा है वो मोन्डोग्रास, आप यूज कर सकते हैं। एपिशिया है बीच में ऊपर, ऑरेंज रेड कलर का दिख रहा है वो, तो दीज प्लांट्स यू कैन यूज। पोर्टुलेका 7 जो है वो राइट साइड को है, तो यू कैन यूज दीज प्लांट्स फॉर एज अ ग्राउंड कवर। श्रब्स जो होते हैं उसके नीचे ग्राउंड कवर, तो यू कैन यूज दीज प्लांट्स। क्रीपर्स मैंने बहुत से यहाँ पे पिक्चर्स नहीं लगाए, लेकिन आई हैव गिवन द लिस्ट
रात की रानी, रात रानी जो बोलते हैं, बहुत से क्रीपर्स हमको भी पता होंगे। बोगनविलिया है, थम्बर्जिया है, कॉर्बेट्रम कॉम्ब्रेट्रम बोल के है, वो भी आप गूगल कर लेना, बहुत अच्छा प्लांट है। और ये सब वेरनोनिया, एपोमिया, ये सब है, वो आप यूज कर सकते हैं क्रीपर्स के लिए। मधुमालती बोलते हैं, वो भी होता है। बहुत से क्रीपर्स होते हैं, नर्सरी में जाएंगे तो यू कैन गेट लॉट ऑफ क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब लास्ट पार्ट इज लॉन। लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था, लॉन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गार्डन. Lawn is the hardiest perennial herb, it is said. A well-kept lawn enhances the beauty of any garden, be it big or small. It defines and brings out the beauty of other plants, structures, and garden paths. It gives cool and comfortable feeling. Apart from this, as I said earlier, वो synthetic कचरा जो होता है वो भी absorb नहीं करता, इसलिए our land remains good. And the soil also in the rainy seasons is absorbs, it percolates all the water, flood water and all, so the soil erosion becomes less when there is a lawn. तो varieties of lawn कौन सी है? हरियाली बोल के है, दूब बोलते हैं हिंदी में मोस्टली। आपको जब लैंडस्केपिंग का लेक्चर होगा तो यू विल गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस। तो पैस्पालम जो बोलते हैं, ब्रॉड लीफ जो रहते हैं, हम जब गार्डन्स में वगैरह, पब्लिक गार्डन्स में जाते हैं तो वी सी पैस्पालम, ब्रॉड लीफ लॉन जो रहता है, तो वो यूजुअली बड़े ट्रीज के अंडर रहता है, बिकॉज इट ग्रोज गुड इन शेडी एरियाज। गोल्फ ग्रास जो रहता है वो बहुत फाइन रहता है, आपने देखा होगा कभी गोल्फ ग्राउंड में गए हैं तो। देन अगेन जंपिंग ग्रास वो क्लस्टर्स में आता है, फॉर सर्टन फोकल एरियाज अगेन क्लस्टर, ये जंपिंग ग्रास हम यूज करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉन। टोपियरी बोल के जो है वो व्हेन वी गिव अ गुड शेप टू द प्लांट, लाइक दीज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, इसको टोपियरी बोलते हैं। तो व्हेन यू गिव शेप टू द प्लांट, इट इज सेड ये लुक्स के लिए, हम गुड लुक्स के लिए हम उनको शेपिंग देते हैं। तो फाइकस वगैरह, वैक्स माल्फिजिया है, फाइकस है, तो वी कैन शेप दिस प्लांट्स इन अ ब्यूटीफुल शेप। कोनिकल शेप रहता है, राउंड शेप रहता है, वास शेप रहता है, बहुत से शेप में हम उसको कट कर सकते हैं। नाउ प्लानिंग योर गार्डन। टू प्लान a garden for yourself or for your clients requires careful planning. An unplanned haphazard garden will not look good and will create problems like leakage, create shadows on the garden, lawn, etc. मैंने जो बोला आपको हाइट के हिसाब से मैंने थोड़े प्लांट्स जो दिखाए आपको, तो इट वाज फॉर दिस रीजन कि वो बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। और after planting, if the plant grows very tall, then it will give shade बहुत हो जाएगी, तो other plants will not grow properly because of that shade. So while gardening, while planning a garden, you have to plan it according to the size and height and size of the plant. Your garden would be a waste of time and money. To get the right, make a list of features you want in your garden. अब जब planning कर रहे हैं garden, तो you have to make a list of the necessary things whatever you are going to plant in the garden. तो checklist क्या क्या आप कर सकते हैं? I will tell you about planning. आप first of all किस type का garden आपको plan करना है? तो one will be for relaxing. तो रिलैक्सिंग के लिए है तो आप गजीबो वगैरह यूज कर सकते हैं आउटडोर के लिए। सिटिंग एरिया कर सकते हैं, डेक जो बताया मैंने पिछली बार, डेक कर सकते हैं, या पेविंग वगैरह ऐसे कर सकते हैं आप। ये पिक्चर में दिखाया है वैसे। यू कैन यूज परगोलास, गजीबोस, अम्ब्रेला, टेबल चेयर्स फॉर रिलैक्सिंग. Then for guests and parties,
भी आप ऐसे कर सकते हैं। परगोला बड़ा थोड़ा एरिया रहेगा तो यू कैन मेक पेविंग, सिटिंग, बारबेक्यू, बार काउंटर, सर्विंग काउंटर, ऐसे सब ये चेकलिस्ट में आपके चाहिए। सो प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। विंडोज में आप अगर आपके विंडोज से बाहर देखेंगे तो अच्छा गार्डन दिखना चाहिए, तो यू कैन प्लान दैट वे। विंडो से बाहर देखेंगे तो योर गार्डन शुड लुक वेरी गुड, तो फ्लावरिंग वगैरह आप ये राइट साइड को है वैसे कर सकते हैं। विंडो के बाहर ही बड़ा ट्री लगाएंगे तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू, सो प्लान अकॉर्डिंगली। विंडो से भी वो अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा गार्डन आप बना सकते हैं। विंडो के बाहर देखेंगे तो यू कैन सी फ्लावर्स, लॉन अच्छा दिखना चाहिए, सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा प्लान करो। वाटर एलिमेंट्स आर वन ऑफ द कंपोनेंट्स, तो फाउंटेन्स क्रिएट कर सकते हैं आप, लिली पॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसे थोड़े पिक्चर्स बताए हैं। यू कैन क्रिएट वाटर बॉडीज इन द गार्डन। ये भी अगेन दीज आर ऑल्सो वाटर एलिमेंट्स के साथ हैं। लिली पॉन्ड्स कर सकते हैं आप। देन यू कैन प्लान योर गार्डन विथ रॉकरी। तो रॉक्स यूज करके भी आप सक्यूलेंट्स, कैक्टस, आउटडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप बुशेस वगैरह यूज करके ये कर सकते हैं रॉकरी के साथ। Then you can decorate your garden with statues and garden decorations. Like you can see in the left pic, there is one bird. Then again, in the right picture, there is a pot. So you can use various garden decorations and statues. So these all things you have to consider before planning your garden. और एक है जिनको बहुत गार्डन में ध्यान नहीं दे सकते, तो यू कैन गो फॉर लो मेंटेनेंस गार्डन। तो लो मेंटेनेंस गार्डन में प्लांट्स कम रहेंगे और पेबल्स, हार्डस्केपिंग ज्यादा रहेगा, पेबल्स, टाइल्स, पेविंग, ये सब ज्यादा रहेगा, लेकिन दीज गार्डन्स आल्सो लुक गुड। और अगेन देन समवन हु लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन, आप बहुत ये है किचन गार्डन कर सकते हैं, फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं, सीजनल्स, हर्ब गार्डन, बोनसाई गार्डन, ऑल द गार्डन वैरायटीज यू कैन हैव इन योर गार्डन व्हेन यू लाइक टू वर्क इन योर गार्डन। Then again, what all you need for small children है घर में, तो you can make garden for them also. So basically these I am telling, ये बता रही हूँ क्योंकि whenever you plan your garden you have to consider all these things. अगर small children है तो you can just arrange something good for them, like ये colorful fencing है right side को, तो यू कैन जस्ट मेक अ ट्री हाउस ऑल्सो। यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन ट्री हाउस कर सकते हैं, गार्डन में स्विंग्स लगा सकते हैं, स्लाइडर्स लगा सकते हैं, तो इट विल बी ऑल्सो गुड फॉर प्लेइंग एरिया, अच्छी बन सकती है चिल्ड्रन के लिए। सो व्हाट एवरी गार्डन नीड्स, मैंने पिछली बार में भी आपको बताया था, इक्विपमेंट, शेड एंड स्टोर रूम, देन कॉम्पोस्ट पिट, propagation area, छोटा भी रहेगा तो चलेगा। And now how to begin? Now make a checklist. As I said, you have to make a checklist before planning a garden. तो checklist में क्या क्या you have to consider. So first of all, record what you have in the existing garden space. Existing garden space में आपके garden में क्या क्या है वो आप you have to make a list of that. Trees है, shrubs है, then you have to think ये कौन से रखना है, कौन से remove करना है. You have to think on which ones you want to keep or which ones you want to remove. क्यों रिमूव करना चाहेंगे? अगर वो प्लांट बीच में आता है, सब गार्डन में ऐसे ही बीच में ही प्लांटेशन कर दिया है, तो दैट प्लांट विल कम in the middle of your garden, so you can remove that plant or you can just shift that plant somewhere else.
Check on the fence and compound wall. Condition of the wall. If it needs improvement, then make improvement. Fencing और compound wall अच्छी नहीं है. Fencing टूटा फूटा है. तो जरा वो अच्छी तरह से you have to mend it. Compound wall भी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो you can just paint it or you can make it look good. Condition of wall. If it needs improvement, then you have to do it. Then screening area. अगर neighbors के बहुत neighbors है आजू बाजू में और the your garden is near the road, तो बहुत traffic है road पे, तो you can provide a screening area so nobody can interfere or nobody you can have privacy when you screening के लिए plantation कर देंगे तो. और screening you can plant ficus की varieties होती है, cupressus होते हैं, बहुत सारे ऐसे varieties मिलती है, तो you can just screening area कर सकते हैं. Note if there are any slopes, depression, boulders, rocks on the ground. Slopes है क्या ground में, depressions है क्या, खड्डे वगैरह है क्या, boulders, mounds वगैरह है क्या, rocks कहीं पे है क्या, तो वो भी note करके लेना है. And if you can use those slopes, boulders वगैरह आप use भी कर सकते हैं, rocks है तो वो भी use कर सकते हैं, but if you can't use them, just remove them. Find out the rules of the society for boundary pattern, gates, etc. बहुत यहाँ metro cities में बहुत society के rule रहते हैं, तो you can just find out the societies. बेंगलोर वगैरह जैसे residential areas में बहुत से rules रहते हैं, तो boundary patterns and gates के you can just find out those rules. Find out if there are any underground utility lines. This is a major this. अगर हम plantation करना चाहते हैं तो we have to dig a pit. So it's better to see the underground utility lines like water, sewage, electricity and gas. नहीं तो आप pit dig करेंगे और the lines will get damaged. So you have to look for them first. लाइटिंग एंड प्लम्बिंग रिक्वायरमेंट्स जो है आपके लिए, पानी तो चाहिए हमको गार्डन के लिए, या अगर आप पॉन्ड बनाते हैं, फाउंटेन बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्लम्बिंग वर्क और लाइटिंग नेसेसरी है गार्डन में. तो यू हैव टू वो पॉइंट्स भी आप ये करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, कहीं कहाँ आपको लाइटिंग चाहिए, कहाँ वाटर रिक्वायरमेंट्स है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द प्लम्बिंग एंड लाइटिंग. Measure the exact area for the garden and draw it in scale on a piece of paper. Exact आप piece of paper पे, ऐसे ही नहीं है कि perfect चाहिए, लेकिन you can just draw it for yourself when you are making your own garden. Mark the directions. Directions are very much necessary. Sunlight कहाँ से आ रहा है, धूप कहाँ आती है गार्डन में, तो north, south, east, west, these are the directions. केयरफुली दोपहर तक धूप कितनी रहती है, देन आफ्टर 12 PM कितनी रहती है, तो गार्डन इज मोस्टली सनलाइट नेसेसरी है गार्डन के लिए, तो यू हैव टू मार्क द डायरेक्शंस एंड प्लांट द plants accordingly. Mark the amount of sunlight in every area of the plot. Incorporate and work according to the वास्तु suggestions if needed. बहुत जनों को वास्तु शास्त्र में भी ये होता है, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र ऑल्सो वो जो सजेस्ट करते हैं तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. डिसाइड द स्टाइल ऑफ योर गार्डन. डिसाइड द स्टाइल ऑफ योर गार्डन मैंने आपको कौन सा, ज़ेन गार्डन बुद्धिज्म के लिए जैसे वो ज़ेन गार्डन, रॉकरी, पॉन्ड, माउंट, ये जो रहते हैं पगोडास वगैरह वैसे चाहिए, या जस्ट अ मॉडर्न गार्डन चाहिए, तो वैसे आप स्टाइल ये जो रहते हैं फॉर्मल गार्डन्स, इनफॉर्मल, ये मैंने पिछली बार बताया था, आई विल नॉट. तो इस टाइप में भी यू हैव टू डिसाइड कौन सी टाइप की गार्डन चाहिए आपको, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. सिलेक्टिंग प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग नाउ. ट्रीज कौन से, अगर आपकी छोटी है गार्डन तो गो फॉर स्मॉल प्लांट्स. Don't go for big trees and tall trees. So when your garden
is big, the area of garden is big, then you can go for very big, for big gardens, you can go for big trees. Big trees आप use कर प्लांटेशन कौन से ट्री, स्मॉल ट्रीज करने हैं, बिग ट्रीज करने हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं. Then you have to go for shrubs, ground covers, lawns and creepers. क्योंकि these are the backbone of, so choose the ones that will look the best, thrive and build a future, like making the shadow or blocking the view. First choose the shape and size of the trees and then decide on the species. पहले आप स्पेसिफिक फंक्शंस कौन से ट्री ये करता है, तो ब्रॉड स्प्रेडिंग ट्री. ब्रॉड स्प्रेडिंग है, अगर आपकी गार्डन बहुत बड़ी है तो यू कैन गो फॉर ब्रॉड स्प्रेडिंग ट्रीज. वो शेड भी देगी गार्डन में, इट विल आल्सो लुक गुड. वास शेप ट्रीज, तो वी शेप जो रहते हैं, वास अपने वी शेप रहते हैं, वैसे ट्रीज आप टॉपियरी, मैंने जो आपको ये किया, तो थुजा और फाइकस वैरायटीज है, तो टॉपियरी में हमने देखा, तो उस टाइप के भी आप लगा सकते हैं. स्मॉल राउंड ट्रीज फॉर द पेशो एरिया, हम ये लगा सकते हैं, इनको फ्लावरिंग ट्रीज लगा सकते हैं, सब श्रब्स जो बोलते हैं वो लगा सकते हैं अराउंड द पेशो एरिया. बाकी फोर्थ पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर इंडिया, सो आई विल जस्ट स्किप इट. पिरामिडल और कॉलमनार, पिरामिडल मीन्स कोनिकल शेप के जो रहते हैं वो आप लगा सकते हैं, अशोका वगैरह भी बहुत से हैं. कॉलमनार मीन्स दे विल गो स्ट्रेट रोज. इफ यू वांट टू स्क्रीनिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं. some of the examples have been given, Putranjiva, etc. और जो एक्सेंट और स्पेसिमेन ट्रीज फॉर स्ट्राइकिंग शेप और कलर मैंने पिछले इसमें या वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं. तो फोकल पॉइंट के लिए भी आप ये ट्रीज, बहुत बड़े ट्रीज में ये टेबुबिया, पोडोकार्पस और क्रिसमस ट्री यूज कर सकते हैं. ट्रीज विथ फ्लावरिंग इन द गार्डन. वाटर एलिमेंट के लिए बॉटल ब्रश वगैरह बहुत अच्छा दिखता है. ये बिलो, ये ऐसे ड्रूपिंग उसका नेचर है, वाटर बॉडी. स्मॉल इंस्टेंट गार्डन्स जो है वो नर्सरी में से लेके आते हैं और जस्ट यू अरेंज इट. So these are the interesting composition made for special occasions, festivals and exhibitions. Sometimes in a place like I think we have covered these things last time also. Basically plants in pots in various sizes, textures. Garden exhibitions वगैरह जब होते हैं तो ये सब आर्टिफिशियल फाउंटेन्स वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं. उसमें आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, स्टैचूज वगैरह रहते हैं, तो ये सब यूज करके यू कैन मेक अ स्मॉल इंस्टेंट गार्डन. जहाँ पे भी कुछ तो प्रोग्राम है एंड यू हैव टू मेक द गार्डन लुक गुड, so you just have to bring ready-made plants and you can arrange this way. So these are called instant gardens. Pebbles, gravel, sand, ये सब use कर can make an instant garden with this. Preparation prior to planting, क्या क्या करना है आपको? Use your scale drawing of the plot and sketch out a plan for your garden. आप अपने हाथ से भी sketch out कर सकते हैं garden के लिए. Big garden, then you can go for soil testing. Otherwise, if you know you have already been growing your plants in your garden, most plants do well in neutral to slightly acidic, but some may have extreme yields.
find the existing pests in the soil and area. Pests बहुत ये रहेगी plantation बहुत garden if the garden is in a very haphazard condition, then you have to look for pests and pests कौन से है, existing pests कौन से है soil में, वो देखना चाहिए. Usually when there is grass grown everywhere, lawn है और उसमें से grass grow हो रहा है, otherwise there is a wet place, so you can go and check for termites also. बहुत if the place is old, then usually there is a termite problem, so you can check that also, and other pests also you can see. And before starting the plantation, you can treat the ground beforehand, so that there won't be problems later on. Learn proper techniques and enjoy your creation. So now प्लांटिंग टेक्निक्स जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सॉइल टाइप्स भी बताया मैंने पिछली बार. सॉइल टाइप्स बताया. रिच वर्केबल सॉइल इज ओनली अ ड्रीम फॉर मोस्ट लैंडस्केपर्स since it takes constant efforts to maintain. Hello, 1 minute, Deepa. Yeah. Hold your mic properly. Voice is breaking when you are moving. Okay. थोडीशी हल्लीस की माइक हे होतोय, तर माइक थोडासा Okay. हलू नकोस. Fine. तो सॉइल टाइप्स के बारे में लैटराइट सॉइल हमारे यहाँ जो मिलती है और एलुवियल सॉइल वगैरह वो बताया था मैंने पिछली बार. तो रिच वर्केबल सॉइल इज ओनली अ ड्रीम फॉर मोस्ट लैंडस्केपर्स सिंस इट टेक्स कांस्टेंट एफर्ट टू मेंटेन. You will have far better success if you choose plants that can tolerate the soil you already have. Here is how to determine the soil's characteristics. First, find the soil's pH by testing it. 7 जो है वो न्यूट्रल है उसका ये टेस्टिंग. तो most plants do best in neutral to slightly acidic soil, but some have more extreme needs. Next, determine whether the soil is clay, loam, pick up some damp soil and squeeze it. आप जब हाथ में लेके स्क्वीज करेंगे वो soil, and when you drop it, it should be, the soil should be porous basically. I've told you earlier also, all the soil must be porous while you have to plant do the plantation. If it hold tightly and feels sticky, it is mainly clay. If it holds together loosely but isn't sticky, it's loam. If it's gritty and stick together, percolation के लिए भी अच्छा है loam. ये so you can just use it. Pests and diseases. The existing pests in soil can be devastate your garden in no time. Treat the ground and put additives beforehand to avoid problems later on. इसके लिए chemicals भी बहुत use करते हैं, लेकिन usually हम हमारा घर का garden है तो you can use this tobacco का जो पानी रहता है, तो usually termite वगैरह जो problems होते हैं तो वो tobacco के problem पानी से ये हो जाता है, it goes off. तो प्लांटिंग टेक्निक्स जो है, स्प्रिंग एंड मॉनसून एंड आर द बेस्ट टाइम्स फॉर प्लांटिंग. मींस कौन से मंथ में आप प्लांटिंग कर सकते हैं? तो जनवरी, फरवरी और अगस्त टू सितंबर, दीज आर द प्लांटिंग. अब समर में हम नहीं कर सकते, मार्च में हम नहीं कर सकते क्योंकि धूप बहुत रहती है और बहुत रेनी जब आता है, जून जुलाई में भी बहुत रेनी सीजन रहता है, तो we can't plant in that season also. तो after the rainy season gets over, means बारिश के बाद हम अगस्त सितंबर में प्लांटेशन कर सकते हैं, and January, February, these are the best months to do the plantation. For planting shrubs, dig a hole. Planting techniques जो बताया मैंने इसमें, तो for planting shrubs what you have to do, dig a hole double the size of the root ball. जो root ball रहता है, roots जितने रहते हैं तो उसके डबल आप
पिट डिग ये कर सकते हैं. For planting trees, you have to dig a pit of 2 feet by 2 feet, 2 feet deep and the length and breadth. Fill the pits for both types with the following mixture. अब क्या क्या आप मिक्सचर डाल सकते हैं? तो 1/3 depth with dry leaves, then fill with potting mixture. Sprinkle additives like linden and medicine for white ants. White ants का भी बहुत प्रॉब्लम आता है बताया मैंने. तो ये एडिटिव्स आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो टबैको ये यूज कर सकते हैं. देन पोजीशन द प्लांट आफ्टर लूजनिंग द रूट बॉल. रूट बॉल लूजन करके आप वो रूट्स जो है अगर बहुत ही क्लॉग्ड होंगे तो यू हैव टू लूजन द रूट्स एंड देन प्लांट द प्लांट. एक है जैसे आप रूट्स आपके ग्रो होंगे वैसे ही शेप ऊपर के प्लांट्स को मिलेगा. तो रूट शुड बी वेरी प्रॉपरली प्लांटेड. देन फिल द पिट अप टू द सरफेस विथ मोर सॉइल. पिट आपको सॉइल से भरना है. कॉम्पैक्ट द सॉइल, वाटर इमीडिएटली सोकिंग द पिट एंड द सराउंडिंग एरिया. तो वाटरिंग करना है. General soil mix for a pit is soil, cow dung manure, vermicompost and leaf compost and neem cake in the proportion 1:2 half and neem cake should be 1/4. Then what should be the distance between two big trees? It should be 20 feet. The distance between two tall and big trees should be 20 feet. Small trees के बीच में 10 feet का रहना चाहिए. And distance between shrubs should be 2 to 3 feet. In hedges, hedges means हम एक जैसे जो hedging के लिए लगाते हैं तो उसमें 1 feet का distance रख सकते हैं because it again grows, side से वो बहुत grow हो जाता है. तो this was regarding the basic things about landscaping and outdoor plants. Now we will see about pests and diseases. खाली एक कॅप्शन येते ते प्लीज तुम्ही काढू शकाल का? इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्लाइड्स. Okay, fine. स्क्रीन शेअर म्हणून एक कॅप्शन येते ती काढलं तर बरं होईल. थँक्यू. Okay, fine. Now pests and diseases, these are the major problem. आज मैं बताऊंगी वो जब सिर्फ आपको pests कौन कौन से आपके गार्डन में हो सकते हैं वो बताऊंगी. Actually this main session will be taken later, what you have to use and everything, but how to identify and the pests. इसको क्या बोलते हैं? लाइक पिछली बार अफिड्स किसने तो मंजूषा मैडम बोल रहे थे some people didn't know what are aphids. तो आपके गार्डन में देखा होता है आपने, but you don't know what the how to identify them. So I'll just be telling you about that. और usually मैंने बताया कि I never use any chemical pesticides. लेकिन just for your information, in this I have added what chemical fertilizers and pesticides you can use. But usually I use वो ये बोलते हैं जीवामृत जो होता है वो we use. Then गोमूत्र diluted form में गोमूत्र we use. और whatever हमको ये मिलता है नीम का अर्क वगैरह. धनश्री मैडम का पीएचडी का ये भी है, उनका रिसर्च का शिकेकाई एंड वेखंड का जो कॉम्बिनेशन है वो हम यूज करते हैं. तो ऐसे अल्टरनेटिव्स हम यूज करते हैं. सो वी डोंट यूजुअली गो फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑल्सो. तो बेसिकली पेस्ट्स कब होते हैं? So when your immunity of plant is very less,
इम्यूनिटी आपके प्लांट की लेस होती है तो पेस्ट्स उसको अटैक करते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वी हैव टू, जैसे मैंने कंपोस्टिंग और सब बताया, 15 डेज के स्पैन में यू हैव टू पुट वर्मी कंपोस्ट डालना है उसको, नहीं तो हमारा घर का कंपोस्ट डालना है। तो बेसिकली मेक योर प्लांट हेल्दी सो द प्लांट वोंट अट्रैक्ट एनी पेस्ट्स। अगर उससे भी हो जाते हैं तो यू कैन यूज पेस्टिसाइड्स। तो जब these are the disease triangle बोल के है, when these three elements are all present plant disease may occur। तो ये क्या है? तो environmental conditions favorable नहीं है। एक तो host plant है, a plant that can get sick means immunity जब अच्छी नहीं रहेगी, हम बोलते हैं अब कोरोना के इसमें भी हम बोलते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है उनको वायरस कोविड ज्यादा ये हो सकता है। ऐसे वैसे ही प्लांट के बारे में भी है, उनकी जब इम्यूनिटी कम होती है तो दैट प्लांट कैन गेट सिक इजीली। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, प्रॉपर सनलाइट उसको नहीं मिल रहा है, इट इज केप्ट इन, अगर इट्स नॉट अ शेडी प्लांट एंड देन टू इट्स केप्ट इन अ शेडी एरिया, तो दिस कैन हैपन, the diseases can be attracted, और the fungus बैक्टीरिया और वायरस जो अटैक करता है वो। तो these are the three elements that are present। तो ये तीन एलिमेंट, then your plant can be attacked by a pest। तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं प्लांट पे, येलोइंग जब हो जाएगा, आपके लीव्स येलो हो पीले पड़ रहे हैं, तो अपर लीव्स फर्म बट येलो। अब सिम्टम्स एक चार्ट देखा है मैंने, अपर लीव्स आर फर्म बट येलो, देन what is the cause? The due to use of calcium in the compost ऑफ लाइम हिटिंग प्लांट्स। अगर हम कंपोस्ट में भी आपको पिछली बार आई डोंट रिमेम्बर इफ आई टोल्ड यू, अगर सिट्रस ज्यादा हम यूज करते हैं तो वो कंपोस्ट में लाइम ज्यादा होगी, और अब अगर द प्लांट इज लाइम हिटिंग तो और ज्यादा कैल्शियम भी होता है तो और यूज ऑफ हार्ड वाटर भी होता है, तो ये फर्स्ट इसमें दिखा है डायग्राम में। तो ऐसे प्लांट्स पीले पड़ सकते हैं, लीव्स पीले पड़ सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू चेंज द सॉइल एंड यूज सॉफ्ट वाटर और रेन कलेक्टेड वाटर। सॉफ्ट वाटर कैसे कर सकते हैं आप? यू कैन कलेक्ट द वाटर इन अ ड्रम एंड कीप इट फॉर 24 hours, तो वो वाटर थोड़ा सॉफ्ट बन सकता है, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर प्लांट्स। लीव्स डल और लाइफलेस जब लगेंगे, तो सेकेंड इसमें दिखाया है, लीव्स आर डल एंड लाइफलेस, तो दैट व्हाट इज द कॉज फॉर दैट? टू मच ऑफ लाइट और वेरी लेस लाइट इज ऑल्सो ये होता है, हो सकता है, कॉज हो सकता है। और अटैक ऑफ रेड स्पाइडर माइट और सेटिंग ऑफ डस्ट और ग्राइम, जब प्लांट्स वॉश नहीं किए हमने तो उस पे डस्ट ये हो सकती है, तो दैट कैन बी ऑल्सो द रीजन। तो व्हाट यू कैन डू, मूव द प्लांट टू अ शेडी एरिया, और अगर शेड में है तो यू कैन मूव इट टू द लिटिल ब्राइटर एरिया, ट्रीट एंड रिमूव द स्पाइडर्स एंड कीप द प्लांट क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री। थर्ड में आप देख सकते हैं स्पॉट्स और पैचेस ऑन द लीव्स। ये जो स्पॉट्स और पैचेस दिख रहे हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, तो द स्पॉट्स कैन बी क्रिस्प एंड ब्राउन, डार्क एंड ब्राउन, व्हाइट भी हो सकते हैं, और स्ट्रॉ कलर के ब्राउन हो सकते हैं अगेन। तो व्हाट आर द कॉजेस? अंडर वाटरिंग एक कॉज हो सकता है, नहीं तो ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। और टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर अगर बहुत कोल्ड हो तो भी हो सकता है, otherwise that can be because of too much of sunlight also। so water until it drains, water उतना ही डालो जितना जरूरी है, and water should be of room temperature, ज्यादा cold नहीं रहना चाहिए। and if the plant is in too much sunlight, then you can just shift the plant to the shade।
फोर्थ में ब्राउन टिप्स जो दिख रहे हैं, ब्राउन टिप्स एंड एजेस ऑन द लीव्स जो दिख रहे हैं, तो दीज आर ड्यू टू पेट्स एंड पीपल ब्रूइजिंग। और एक्सटर्नल कुछ तो इससे ये हो सकता है, अगर वो इफ इट इज टचिंग द कंपाउंड वॉल वगैरह से टच कर रहा है तो ये ब्राउनिंग हो सकता है। और अगर आप सी एरियाज में, कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो इट कैन बी ड्यू टू सॉल्टी सी एयर ऑल्सो। फिफ्थ है वो लीव्स कर्ल एंड फॉल। इसके लिए आप ब्राउन प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पेट्स एंड पीपल एंड रीपोजिशन द प्लांट। अगर वॉल के बहुत ही क्लोज है तो यू कैन जस्ट शिफ्ट इट फ्रॉम देयर। एंड प्रोटेक्ट बाय स्क्रीनिंग टू अवॉइड सॉल्टी सी एयर। स्क्रीनिंग कर सकते हैं इससे भी, तो सॉल्टी सी एयर से आप उसके उस हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ जो है तो लीव्स कर्ल एंड फॉल। लीव्स जो बहुत हमने देखे वो सीजन में बहुत होता है, ऐसे कर्ल होते हैं, फाइकस के लीव्स वगैरह भी कर्ल होते हैं एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। तो इट इज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। कोल्ड सराउंडिंग्स रहेंगे, कोल्ड ड्रॉट्स रहेंगे तो मोस्टली हो सकता है। तो मूव द प्लांट टू वार्मर प्लेसेस। और अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ यू आर प्लांटेड दिस प्लांट इन द garden, so you have to just cut the leaves, remove the leaves. आप pruning करके leaves ये कर सकते हैं, remove कर सकते हैं। Sixth is wilting leaves. अगर ज्यादा soil dry होगी या too much of sun at midday, तो the leaves will wilt. Move the plant to warmer places. Sorry, move the wilting leaves के लिए check watering, move plant to semi shade areas. 7 जो है तो सडन लीफ फॉल हो जाता है। तो अगर आपने प्लांट अगर आप रीपॉट किया है शायद, तो द बिफोर द plant gets sets in the new pot, the leaves can also fall. That is the shock to the plant system. So sudden change in temperature or change of place also can be the cause. और ये शॉक जो ये होता है, इफ यू हैव प्लांटेड रीपॉटेड द प्लांट, तो इट कैन हैपन, बट नॉट टू केयर मच। अगेन द लीव्स विल, you can give vitamin and hormone liquid before and after changing places. अगर आप बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है प्लेसेस में, तो आप हॉर्मोन्स, लिक्विड हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो दे सकते हैं उनको, so that the roots become stronger and then the plants also becomes stronger. 8th जो है वो लीफ फॉल और न्यू लीव्स है ड्यू टू रिपोर्टिंग। अभी मैंने बताया वो वही है, ड्यू टू रिपोर्टिंग और ड्यू टू चेंज ऑफ प्लेस, यही है उसका। रिपोर्टिंग जब आप करते हैं तो यू हैव टू कीप द प्लांट प्रोटेक्टेड। डायरेक्ट सनलाइट में you repot a plant, you have to keep it in a shade for at least a week, और देन थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के ला सकते हैं। डायरेक्ट शेड में से डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं लाना है। 9th जो है तो लोअर लीव्स और मेनी लीव्स टर्न येलो एंड फॉल। ये इट इज अ नेचुरल लीव्स टू टर्न येलो एंड फॉल इन सर्टेन सीजन्स। तो ये ड्राई और येलो हो जाएंगे तो यू कैन जस्ट रिमूव देम so that the starts coming. इसमें जो 10th है, प्लांट ग्रोइंग स्लोली फॉर और नॉट एट ऑल। बहुत हमको बहुत प्लांट्स में प्रॉब्लम आता है कि इतनी मैंने नर्सरी से प्लांट लाया है, हम बोलते हैं, लेकिन उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इधर द सॉइल है हमारी, दैट इज नॉट फर्टाइल और अच्छी नहीं है, नहीं तो पॉट बहुत छोटा है प्लांट के हिसाब से, ऐसे भी हो सकता है। तो अंडर फीडिंग दैट कैन बी द कॉज। और पॉट बाउंड मीन्स प्लांट पॉट छोटा है और प्लांट बहुत बड़ा है, ये भी हो सकता है। तो जस्ट सी दिस एंड फीड द प्लांट रेगुलरली एंड रीपॉट द प्लांट। छोटा है तो बड़े पॉट में आप प्लांट कर सकते हैं। 11th जो है वो वेरी स्मॉल लीव्स विथ स्पिंडली ग्रोथ बोला है, जैसे से ट्विस्टेड ग्रोथ रहती है, तो अगेन इट इज अंडर फीडिंग एंड लेस सनलाइट। 11th जो दिख रहा है वो ट्विस्ट
ग्रोथ जो बोलते हैं वैसे है। तो चेंज द प्लेस ऑफ द प्लांट एंड फीड रेगुलरली। 12th है फ्लावर बर्ड्स फॉल अगेन द ये हो जाता है, बर्ड्स आते हैं लेकिन इट फॉल्स बिफोर ब्लूमिंग। तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ ड्राई एयर, अंडर वाटरिंग और टू लिटिल लाइट, नहीं तो इंसेक्ट डैमेज हो सकता है। तो यू हैव टू चेक why it is, because of what, एक किस वजह से हो रहा है। you have to find out the reason and then you can treat them accordingly. if it is because of dry air, then change the place of the plant. अंडर वाटरिंग है क्या देखना है, अगर वो पानी कम पड़ रहा है तो you can water it. टू लिटिल लाइट भी रह सकता है बर्ड्स के लिए, और इंसेक्ट डैमेज भी हो सकता है। तो इफ इट इज इंसेक्ट डैमेज, देन यू हैव टू ट्रीट इट बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। नो फ्लावर ऑन मेच्योर प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है आपके पास लेकिन उसको फ्लावर्स ही नहीं आ रहा है। तो दिस कैन हैपन टू मेनी ऑफ, बहुत से घरों में ओपन ये रहता है, लाइट फॉयर ये रहता है, और वहां पे यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल प्लांट प्लूमेरिया, चाफा जो बोलते हैं हम, टेम्पल ट्री। तो वो यूजुअली इट लुक्स वेरी गुड, बट इनसफिशिएंट लाइट अगर रहेगा, इवन इफ इट इज ओपन टू एयर, द रूफ इज ओपन टू एयर, ओपन टू लाइट, तो ओपन टू स्काई बोलते हैं। प्लूमेरिया जैसे प्लांट्स है उसको बहुत लाइट लगता है, तो देन ओनली दे फ्लावर। तो ऐसे हो सकता है। तो नो फ्लावर्स ऑन मेच्योर प्लांट्स बोलते हैं। तो व्हाई द रीजन कैन बी टू लिटिल लाइट और अटैक ऑफ थ्रिप्स। थ्रिप्स आर इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, सो you have to treat accordingly again and give more light if there are no flowers on your mature plant. मोस्टली फ्लावर्स के लिए धूप लगती है, तो यू हैव टू सी whether the plant is getting sufficient light. That is the major cause actually. Variegated leaves जब green turn होना शुरू हो जाते हैं, तो again it is a cause, the reason is insufficient light. तो उसको ज्यादा लाइट देना है। और ग्रीन लीव्स ज्यादा होने लगे तो जस्ट रिमूव द ग्रीन लीव्स, अदरवाइज इट विल ओवरटेक द वेरिगेशन। फ्लावर्स क्विकली फेडिंग, फ्लावर्स आते हैं लेकिन क्विकली फेड हो जाते हैं। तो यूजुअली वी कैन सी दिस थिंग्स इन समर्स, बहुत धूप होती है तो दिस हैपेंस, और अंडर वाटरिंग होता है तो भी हो सकता है। तो एडजस्ट योर वाटरिंग एंड इंक्रीज द ह्यूमिडिटी। ड्राइनेस की वजह से हो सकता है कि फ्लावर्स क्विकली फेड हो जाते हैं। 16th इज रॉटिंग ऑफ लीव्स। रॉटिंग प्लांट्स लीव्स का हो जाता है, रूट्स का हो जाता है। वन रीजन कैन बी ओवर वाटरिंग, अदर रीजन इट इज अ डिसीज अटैक ड्यू टू पुअर ग्रोइंग कंडीशंस। इफ प्रॉपर फीडिंग नहीं है उस प्लांट को, देन रॉट होके, डैमेज होके और ओवर वाटरिंग हो गया तो वो रॉट हो सकता है। तो अगेन इट इज द थिंग इज यू हैव टू कंट्रोल वाटरिंग। holes and tears in the leaves, that can be physical damage also by pets and people, or it can be insect damage. ज्यादातर insect damage ही हो सकता है, so you have to treat for insects. You have to see actually by what it is happening and then you can treat it accordingly. Then green slime, ये जो pot पे आप देख रहे हैं green slime और white color का जो है ऐसे crusty soil हो जाता है, तो that is because of over watering and poor drainage condition. अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो वो फंगस जैसे ये तैयार हो जाता है पॉट पर। इफ द पॉट इज अर्दन, मोस्टली इफ द पॉट इज अर्दन और सीमेंट का वगैरह जो रहता है उसमें हो जाता है। अगर बोर का पानी आप यूज करते हैं तो भी हो जाता है। दैट सॉल्ट्स भी जो आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर सब यूज करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट्स रहते हैं तो उसमें से भी वो अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हुआ तो द salts build up and this can happen. So give enough water daily for the extra salts to drain out of the pot. Drainage conditions भी अच्छी होनी चाहिए। So these were the some tips about what's wrong with your plant.
अब हम देखते हैं पेस्ट्स एंड डिसीजेस के बारे में। तो व्हाट इज अफिड? अफिड ये इंसेक्ट जो है उसको अफिड बोलते हैं, एंड दीज आर स्मॉल insects which come at the bottom of your leaf. तो small sap sucking insects है ये, usually green, maybe black also, gray और orange भी रहते हैं. So all plants with soft tissues can be attacked by these aphids. Mainly the shoot tips of the flower. जो नए shoots आते हैं और flower buds आते हैं तो ये aphids उसको attack कर सकते हैं. The plant is weakened and sticky honeydew is deposited. तो क्या करना है आपको? Spray with malathion, repeat treatment until eradicated. तो malathion आप ये आपको मिल सकता है इसमें, तो you have to spray that. Otherwise, usually as we all always say, first try for all the organic pests. Caterpillars रहेंगे तो it's actually good. It can afterwards it can turn into a butterfly. But if you don't want them at all, then you have to pick up and destroy individual caterpillar. तो ये अगर नहीं करेंगे तो भी अच्छा है. Then your garden is to be like बटरफ्लाइज में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दैट इज अ रियली गुड थिंग. बट अगर आज हम पेस्ट एंड डिसीजेस में देख रहे हैं तो यू कैन जस्ट, इफ यू डोंट वांट, यू कैन जस्ट पिक ऑफ एंड डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल कैटरपिलर्स. बहुत टाइप के भी आते हैं ये इंसेक्ट्स से. सिट्रस प्लांट्स, लिंबूची झाडं वगैरे असतात त्याच्यावर जास्त असतात. लाईम केस में ज्यादा आपको दिखेंगे एंड दे ईट द लीव्स. मिलीबग्स जो रहते हैं, आप मावा बोलते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक ये है, डिसीज है. तो स्मॉल पेस्ट्स कवर्ड विथ व्हाइट कॉटनी फ्लफ, लार्ज क्लस्टर्स कैन ऑकर ऑन स्टेम्स एंड अंडर द लीव्स ऑफ a wide variety of plants. बहुत आप लोगों ने देखा होगा ये disease mealybugs. So serious attack leads to wilting, yellowing and leaf fall. They attack plants like gardenia, hibiscus and fruit plants like amla. Wipe off with, ये छोटा पॉट में रहेगा तो it is actually possible है wipe off करके ये करने को. लेकिन if it's not, if it's the plant is in the ground, then you can use malathion or you can try for organic pesticides. Again scales, ये भी आप छोटे छोटे लीफ के बॉटम ऑफ द लीफ में रहते हैं. These are scales, small brown discs attached to the underside of leaves, especially along with the veins. You can see along a leaf की जो vein है वहां पे ज्यादा ये करते हैं, अटैक करते हैं. These are immobile. They are immobile. Adults are protected from sprays by the outer waxy shell. इनको एक waxy shell रहता है. तो what you have to do is wipe them off. नहीं तो आप infected leaf जो है just cut the leaf and destroy कर सकते हैं. नहीं तो that will spread to other plants. प्लांट थोड़ा कट किया तो भी चलता है अगर होल ऑफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड. अगेन द प्लांट कैन ग्रो, लेकिन इसका फैलाव ज्यादा नहीं होना चाहिए. देन रेड स्पाइडर माइट, दे आर माइन्यूट सैप सकिंग पेस्ट्स व्हिच कैन इन्फेक्ट द अंडरसाइड ऑफ द लीफ. द अपर सरफेस बिकम स्पेक्ल. ये दिखाया मैंने राइट साइड को लीफ जो दिखती है, तो स्पाइडर माइट्स की इससे ये येलोइंग हो जाता है. White webbing is also sometimes produced between the leaves and stems. So daily misting will help prevent attacks. ये हमने अगर watering जब हम करते हैं तो we can just spray, forcefully spray water on the plant also, so the spider mites can go away. Spray with stronger jets, water jets to dislodge them. नहीं जाते तो again malathion is you can use. व्हाइट फ्लाइज जो रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ये फ्लाइज होते हैं, तो टाइनी व्हाइट मॉथ लाइक इंसेक्ट्स रहते हैं वो, which can be troublesome to many fruit plants like guava. They sit on the underside of the leaf
and suck sap and deposit sticky honeydew. The leaves turn yellow. आपले फर्टिलायझर्सच्या शॉप मध्ये मिळतं. The leaves turn yellow and drop. Spray as soon as the trouble starts. Otherwise, the eradication becomes difficult. Repeat spraying with malathion and sulfur mixture in water every 3 days. तर हे जे डिसीजेस आहेत ते पेस्ट्स आहेत ते हार्मफुल डिसीजेस आहेत त्यांचा स्प्रेड लवकरच तुम्ही हे करा. जर प्लांट्सवर एखाद्या जरी दिसला तर यू हॅव टू इरॅडिकेट इट फास्टर. डॅम्पिंग ऑफ कशामुळे होतं तर द डॅम्पिंग ऑफ इज अ फंगल अटॅक. फंगल अटॅक जेव्हा होतं बरेचसे भाजीपाल्यांच्या ह्याच्यावर आपल्याला असं हे दिसतं. तुम्ही एखादं रोप आणून लावलं जब सैपलिंग लेके आते हैं वेजिटेबल्स का वगैरह तो यू कैन व्हेन यू प्लांट इट देन यू कैन सी दिस फंगल अटैक जैसा रूट को दिखता है. तो इफ देयर इज अ फंगल अटैक द प्लांट वोंट ग्रो प्रॉपरली. वो प्लांट टॉपल हो जाएगा. तो यूज स्टेरलाइज्ड सन ड्राइड कॉम्पोस्ट सो थिनली एंड नेवर ओवर वाटर. ये ओवर वाटरिंग के इससे भी हो सकता है. फंगस ज्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो फंगस ज्यादा हो सकती है. और सॉइल जो आप प्लांटेशन जिसमें कर रहे हैं तो इट शुड बी सन ड्राइड कॉम्पोस्ट आप यूज कर सकते हैं. सॉइल भी आप सन ड्राइड कर सकते हैं. तो सन ड्राई किया सॉइल तो इट विल बी sterilized. Sprinkling of sharp sand and charcoal powder over the surface of soil may also prevent the attack. आप charcoal powder और sharp sand भी उस पे sprinkle कर सकते हैं. Usually this is because of overwatering, so you have to look into that. Powdery mildew जो बोलते हैं ये भी एक फंगल डिसीज है which grows on the surface of the leaves in between the needles of plants like juniper वगैरह जो रहते हैं उसको हो सकते हैं. तो these are the white powdery deposits रहते हैं. It disfigures the leaves and spreads easily to other parts of the plant. Spray the plant with fungicide. Fungicide जो रहते हैं तो fungicide कौन से सल्फर पाउडर वगैरह आप यूज कर सकते हैं. डस्ट कर सकते हैं. मसलिन क्लॉथ जो रहता है उसमें आप वो डाल के स्प्रिंकल कर सकते हैं. डस्टिंग कर सकते हैं इसकी. वेंटिलेशन अराउंड द प्लांट. ये प्लांट अगर बहुत ये है उसको वेंटिलेशन अच्छा चाहिए. ब्राइट लाइट भी नेसेसरी है. नाउ एंट्स भी बहुत सारे हमको दिखाई देते हैं बहुत से प्लांट्स पे. एंट्स अपीयर ऑलमोस्ट एनी टाइम ऑफ द ईयर बट मोर इन समर टाइम. They make their nest in soil and move all over the plant. Actually, the ants by themselves do not harm the plant, but they are carriers of harmful insects like aphids and mealybugs. ये ants हमको कुछ नहीं करती लेकिन they can be the carriers of aphids and mealybugs. Further, also they make soil loose, making the plant shaky in a pot. आप बहुत बार आपने देखा होगा अपने पॉट में या जमीन पे भी अगर प्लांट है तो वो बहुत ओवर पोरस हो जाती है. लाइक लूज हो जाती है बहुत सी. तो यू हैव टू चेक वेदर इट इज इन्फेक्टेड बाय एंट्स. तो एंट्स की पाउडर भी मिलती है. यू कैन यूज दैट पाउडर. स्प्रे कर सकते हैं आप. रिपोर्ट द प्लांट विथ फ्रेश सॉइल. वो सॉइल निकाल के आप सन ड्राई भी कर सकते हैं. सन ड्राइड किया तो भी निकल जाते हैं एंड्स एंड यू कैन यूज दैट सॉइल अगेन. डायबैक जो होता है अगर आप रोजेस में वगैरह दिखते हैं हमने एक स्टेम का कटिंग किया तो वो स्टेम ब्राउन हो जाती है. इट गेट्स तो वो ब्राउन पार्ट है वो कट करके कट करना चाहिए. नहीं तो अगेन वो राइट साइड में दिखा है वो वैसे सकता है. डायबॅक मीन्स हा सुकून गेलंय ते सगळं. डायबॅक म्हणजे ते स्टेम आहे ती सुकलेली आहे आणि तशीच ती पाठीमागे सुकत जाऊ शकते. त्यामुळे प्रॉपर ह्याला ते कट करून लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याच्यावर कॉपर सल्फेट पेस्ट बोर्डेक्स कॉपर सल्फेट पेस्ट असते किंवा कॉपर बेस्ड फंगिसाइड कुठलंही असेल ते तुम्ही लावू शकता त्याच्यावर. त्यामुळे मग ते डायबॅक तुमचं अवॉइड होऊ शकतं.
As the name indicates, the branch and stem of affected tree or plant dieback top downwards as the disease spreads. Dieback can also occur due to injuries to roots by fungus, insects, or careless root pruning. It can also happen due to bad drainage of water or underfeeding of nutrients. असं जर दिसलं तर ते व्यवस्थित कट करून तुम्ही त्याच्यावर फंगिसाइड स्प्रे करू शकता. स्नेल्स आणि स्लग्स. स्नेल्स आपल्याला बरेचसे गोगलगाई वगैरे खाल्लेली दिसतात आणि एखाद्या सीझन मध्ये तर खूपच येतात हे स्नेल्स. यू कॅन सी इन युअर गार्डन. तर एक हे आहे, थोडे असतील तर यू कॅन जस्ट पिक देम अप अँड थ्रो देम आउट. नाहीतर मग एक युजली सॉल्ट वगैरे टाकलं तर सॉल्ट त्यांच्या अंगावर वगैरे टाकलं तर ते हे होऊ शकतात, मरू शकतात. तर युजली स्नेल्स खूप झाल्या तर खूप पानं खातात आणि दे डिस्ट्रक्ट युअर गार्डन. बट इफ दे आर इन लेस क्वांटिटी then you can manually pick them up and throw them out. They lie hidden in the soil during the day and come out at night. और एक हम कर सकते हैं, place beer in a plate on the soil surface and at night time they can be destroyed. Slug pellets पण मिळतात. We get slug pellets are also available, which can be sprinkled on soil surface. These are fairly effective to remove snails and slugs. Slug pellets जे मिळतात. बोरर म्हणून हा प्रकार जो आहे, ती आळी जी असते ती प्लांट्सच्या स्टेम मध्ये आत जाऊन बसलेली असते. कॅटरपिलर बोरर्स derived from moths do not bore down so deeply into the stems of plants. बीटल बोरर्स सारखे ते अगदी आत जाऊन हे होत नाहीत, which usually are derived from beetles. As they bore down the stem or trunk, and one will see powdery wood getting collected on the soil surface. बहुत बार हमको समझ में ही नहीं आता, we can't see this borer, और समझ में नहीं आता है कि प्लांट why the plant is getting infected, और बहुत बार the plant dies also and we don't get understand why ऐसा क्यों हुआ है. तो यूजुअली ये जो बोरर्स होते हैं तो because of them, so you have to check for borers. The effective way to prevent borers harming the tree is to put neem oil. neem oil आप यूज कर सकते हैं, और provide powdered naphthalene balls. हम naphthalene balls जो यूज करते हैं कबर्ड्स में वगैरह रखते हैं, तो you can just powder them and fill it in the hole. लीफ माइनर जो है ये हम वेजिटेबल्स के ऊपर भी हम बहुत दिखते हैं लीफ माइनर्स. तो टेंडर लीव्स जो रहते हैं उस पर ये अटैक कर देते हैं. पालक वगैरह सब्जियां जो रहती है उसमें हम देख सकते हैं, उनके लीव्स पे हम बहुत बार ये देख सकते हैं. तो यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस. बहुत ज्यादा रहेंगे तो यू कैन स्प्रे पेस्टिसाइड, मेलाथियन भी यूज कर सकते हैं. और ये बहुत स्प्रेड हो रहा है तो यू जस्ट हैव टू पिक अप, ये ऐसा दिखा तो यू जस्ट कट ऑफ द लीफ एंड थ्रो इट अवे. सेमी लूपर्स जो बोलते हैं ये ऐसे प्रकार का कैटरपिलर रहता है, तो वो भी इट कैन डैमेज योर plants. These caterpillars are creamy brown in color resembling a stick, or green in color resembling leaf, stem, or a leaf. They camouflage very well with a plant. Unlike other caterpillars, they walk forming a loop between its two extreme ends and attack the green parts of the plant. ये camouflage हो जाते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते बहुत से इसमें. अगर दिखाई पड़े तो you just pick it up and throw it away. तो था पेस्ट वो कैटरपिलर्स वगैरह जो है उनके बारे में, which were harmful. तो not all harmful insects are harmful to the plant. Some pests and insects are beneficial to your garden also. तो वो beneficial कौन से insects है? तो you can see bumblebee. First इसमें bumblebee दिखाई है. तो this helps in pollination.
In comparison with other pollinating insects like honeybees, bumblebees are also very effective pollinators. तो ये जो है वो they are beneficial for your garden. They are not harmful insects. तो इसके लिए chemical pesticides usually हम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि अगर chemical pesticides आप स्प्रे करेंगे तो ये जो good ये जो है insects है वो भी destroy हो जाएंगे. इसलिए it's better to keep your plant healthy by spraying organic pesticides. तो बम्बल है अफिड पैरासाइट बोल के, ये जो छोटा टाइनी वॉस्प है वो देख सकते हैं आप. तो ये क्या करता है, दिस टाइनी पैरासिटिक वॉस्प lay their egg inside aphids, causing them to mummify and die. ये aphids को किल करते हैं. तो उनके एग्स के इसमें से ये aphids को मार देते हैं. Then again मिलीबग डिस्ट्रॉयर बोल के जो है, these small beetles, beetle है ये छोटा, attack all species of mealybugs and also feed on aphids and soft scales. तो अगर ऐसा दिखा आपके गार्डन में तो don't destroy this beetle. Usually beetles अच्छे रहते हैं. ये अगेन लेडी बीटल भी है, रेड कलर का स्पॉट्स का दिख रहा है, ब्लैक स्पॉट्स है उसपे. तो अगेन दिस एडल्ट लेडी बीटल ईट्स aphids, mites and mealybugs. और उनके जो हंगरी गार्डन पेस्ट्स को खा जाते हैं. देन अगेन देर इज ये स्पाइडर माइट प्रेडेटर है, ये जो दिखाया है वो द मोस्ट इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट against two spotted spider mites. We will be also showing you session and giving you information about biopesticides also in the next sessions. They give faster results, but again, they are they make the soil unproductive, but are slower. So last time it took long. This time, Voice is breaking, madam. yeah. हो गया है एक्चुअली, प्रेजेंटेशन हो गया है पेस्ट एंड डिसीजेस एंड आउटडोर प्लांट्स का. होप इट वाज हेल्पफुल टू. एम आई ऑडिबल? हो, केमिकल Yes, यूज yes. पेक्षा प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून आपण काय वापरू शकतो मेलॅथिओनच्या ऐवजी? Yes, this is the outline she has given. These are the remedies regularly used. So we are having a special separate session on organic waste. Organic Okay. substitutes are there and it is now people are accepting it. पहले जो होता था वो लोग एक्सेप्ट ही, एग्रीकल्चर के हो, केमिकल इंडस्ट्री के हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई उसको सब्स्टिट्यूट चाहिए. लेकिन ऑल दीज आर नाउ प्रूव्ड वेरी हार्मफुल टू द इकोसिस्टम एज वेल एज हेल्थ. वो फूड चेन में जाता है, बायो मैग्नीफाई होके हमारे बॉडी में आता है. ये सब कम करने के लिए भी रिसर्च चालू है. पीपल शुड हैव पेशेंस एंड हम लोग उस पे एक अलग से सेशन रखेंगे. Deepali is basically not a botanist, but she is having experience of running her eco center for last 12 years. And she has given the theoretical list regarding this. बहुत अच्छी तरह से दीपाली आपने ये कवर किया. जो आउटलाइन सबको पता चलना चाहिए था. फिर में इसमें से बहुत सारे चीजें जो है वो हम सेपरेट सेशंस में हाईलाइट करेंगे. उसमें से एक है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स. मेरा खुद का भी उस पे काम है. जो हम लोगों को ट्रेडिशनल है, नीम के पत्ते, गोमूत्र,
शिकेकाई का पाणी, सोपनट्स मराठीमध्ये शिकेकाई जे म्हणतात, उसका डिकॉक्शन जो है, यू कैन ट्राई दैट इन योर गार्डन, बट कंपल्सरी रिमेंबर वी विल नॉट यूज एनी केमिकल पेस्टिसाइड्स इन द गार्डन. उसके बारे में सेपरेट सेशन हो जाएगा, बिकॉज यू नो दिस इज वेरी वास्ट. ये गार्डनिंग इट इज नॉट सो सिंपल. वो 28 जो सेशंस होने वाले हैं उसमें से मैक्सिमम हम लोग कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी लिस्ट दीपाली ने जो दी है वो रिलेटेड विद. नाउ यू हैव टू गो टू द मार्केट, आस्क पीपल फॉर द ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स. हम लोग जब तक केमिकल्स रिजेक्ट नहीं पूरी तरह से करते तब तक तो वो मार्केट में आती रहेंगी. ओके, सो दैट इज अगेन वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट तब तक आप कह सकते हैं कि ये जो है गोमूत्र है, टोबॅको वॉटर शी टोल्ड, सो दीज आर नॉट हार्मफुल. मॅडम आपण शिकेकाईच्या ऐवजी रिंग्या किंवा रिठा वापरू शकतो काय? रिठामध्ये सूप कंटेंट जास्त असतो, त्यामुळे रिठा पण ट्राय करायला हरकत नाही. तुमच्यासारखंच हे सगळं आता आम्ही पण ट्राय करतोय, पण शिकेकाईला रिझल्ट चांगले आलेले आहेत, वेखंडाला चांगले आलेले आहेत. सो शिकेकाई एकोरस स्वीट फ्लैग जो बोलते हैं वो भी एंटी फंगल अच्छा है, तो वो हो सकता है. ओके, थैंक यू मैडम. दीपाली को जो पूछना है वो पूछिए. दीपाली, वेरी नाइस सेशन दिस वन वाज आल्सो, और इसके अंदर बहुत सारे चीजें उसने कवर की है. ट्रीज थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द गार्डन, सो उसके बारे में लेआउट डिजाइनिंग के टाइम पे और ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा. मैडम, कितने हार्डनेस का पानी प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं? कौन से प्लांट के लिए कितना हार्डनेस तक का पानी यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम हार्डनेस कितना होना चाहिए? दीपा, you can answer. Yeah, actually the water should be soft. Hardness, I'm not very well with it. The water should be soft. अगर आपका बोर का पानी बहुत हार्ड है तो you have to make it soft. आपको सॉफ्ट करके लेना चाहिए. As I said, आप एक ड्रम में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है सुबह तक. So after 24 hours you can use that water for your plants. ओके, थँक यू मॅम. मॅडम, जास्वंदीला कळ्या येतात चांगल्या, पण त्या मोठ्या झाल्या की फूल उमल्याच्या आधी गळून पडतात. ते कशामुळे होत असेल? मग पेस्टच हे असणार आहे. तर तुम्ही डायल्युटेड गोमूत्र आणि जीवामृत आम्ही ह्या लेक्चर मध्ये पण दाखवणार आहे कसं तयार करायचं. तर त्याचा एक सेशन असणार आहे. तुम्ही इम्युनिटी त्या प्लांटची व्यवस्थित केली, एज आय सेड, दर 15 दिवसाला वर्मी कॉम्पोस्ट घाला, कुठली ऑर्गॅनिक तुमचं घरातलं कॉम्पोस्ट असेल ते घाला, शेणखत घाला, लेंडी खत घाला. हे जर तुम्ही ऑल्टरनेट ह्याच्यात घालत राहिलात आणि डायल्युटेड गोमूत्र जर मारलं, जीवामृत जर मारलं, वर्मी वॉश म्हणून पण असतं, जेव्हा वर्मी कॉम्पोस्ट करतात त्याच्याबरोबर वर्मी वॉश पण करतात, ते पण मारलं तुम्ही, तर हे सगळे तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते ऑटोमॅटिकली जाणार आहेत. हे पेस्टच इन्फेक्शन आहे, जे गळतात, तुम्ही म्हणतात बर्ड्स येतात आणि गळतात, तर ते पेस्टचाच अटॅक असतो. त्यामुळे हे जर करत राहिलात तर इट वोंट अफेक्ट. नाहीतर मग तुम्ही मेलॅथिऑन वगैरे वापरू शकता, अगदी खूप प्रमाणात असेल तर यू हॅव टू गो फॉर केमिकल. उन्हाळ्यात किती दिवसांनी हे मारावं, म्हणजे औषध मारावं? डायल्युटेड फॉर्म मध्ये दर 15 डेजला मारायचं. ते हॅबिटच लावून घ्यायची. तुमच्या गार्डनर येत असेल किंवा स्वतः करत असाल तर एक हेच ठेवायचं की आफ्टर एव्हरी 15 डेज फर्टिलायझर्स हे आणि पेस्टिसाइड्स हे मारले गेले पाहिजे. जीवामृत चालू शकतं. येस. हेलो. या मैम, एक्चुअली मैंने जीनिया की सीड्स लेके वो ग्रो करे थे, जर्मिनेट किए, देन वो फर्स्टली तो इनिशिएटली तो वो ग्रो हो गए, आफ्टर दैट वो येलो शो के ड्राई होके सारे फिनिश हो गए, मतलब खत्म ही हो गए. डिपेंड्स ऑन द सीड्स, अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ बोल नहीं सकते. तो उसका जर्मिनेशन वो इनिशिएट हुए थे, फर्स्टली जर्मिनेट हुए थे, आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा ग्रो होके वो डाई होते चले गए. अच्छा, तो वो बहुत सारे एक जगह थे क्या? नो मैम, बड़ा बिग पॉट था. बिग पॉट इन द सेंस कि लाइक थाल जिसको बोलते हैं, काफी बड़ा था, उसके अंदर ही ग्रो किए थे. Maybe usually we have to separate the saplings or we have to plant it separately.
तो वो Okay. अच्छी तरह से उसको नरिशमेंट मिलता है एंड देन इट कैन ग्रो मैम मे बी in proper way. सनलाइट की वजह से मे बी सनलाइट की वजह से भी हो सकता है, ओवर वाटरिंग के वजह से भी हो सकता है. ओके 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 मॅडम गोमूत्राची आम्ही ती आमचे सुद्धा काही वापरू डिसीज शकतो असलेले प्लांटचे फोटो टाकू शकतो का? तुम्ही आम्हाला ते धनश्री मॅडम आय थिंक शी विल आन्सर दिस क्वेश्चन. ओके फोटो तुम्ही कुठे WhatsApp वर टाकले तर हा, चालेल, WhatsApp म्हणजे ग्रुपमध्ये टाकू शकता तुम्ही. हो. हो तेच आपण ना, म्हणजे मग आम्हाला सेशन नक्की कळत नाहीये कुठलं डिसीज आहे. बरोबर आहे. डिसीजेस वरती आपण वेगळं सेशन घेऊ. त्यावेळी आपण क्युरीचं एक सेशन ठेवूया, कारण ह्या सगळ्या गोष्टी ऍट अ टाइम हँडल करणं. पर्सनलला तुम्ही टाकून बघा, जेवढं शक्य आहे तेवढं नक्कीच आम्ही आन्सर करू. पण ग्रुप ओपन केल्यावर जर गोंधळ आपण सगळेच इश्यूज घेतले एकदम, तर मग त्याला काय राहत नाही. त्यामुळे आता चाललंय ते खूप छान चाललंय. that every Sunday I will give one task and that will be completed. So gradually I will arrange those tasks. वो सब टास्क जो है वो हम इसलिए देते हैं कि we will know you also. आप लोगों का क्या चल रहा है. आप लोगों में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या गार्डन में होना चाहिए. We also get different ideas. ये ऐसे ही चलता जाने दीजिए, और मैक्सिमम इसके अंदर हम लोग वो लोगों को कॉन्टेक्ट देंगे. अगर कोई आपको वाटर के बारे में जो लेक्चर होगा वो बताएंगे आपको, यू कैन आस्क देम ऑन पर्सनल ऑल्सो. ओके, वो 28 सेशन में हर एक और एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड. फिर भी ज्यादा से ज्यादा पर्सनल पे आप डाल दीजिए आपके जो फोटोग्राफ्स है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ओके, थँक्यू. Seed sowing procedure, please. Somebody is asking, Rajadhyaksha sir. Surface sowing or so deep should be seed being sown? It again depends on which seeds you are sowing. अगर आप एन्युअल्स के सीड ग्रो कर रहे हो तो सॉइल लेयर का थिकनेस, ये डेप्थ जो है ज्यादा नहीं चाहिए. वो उसका अंकुर जो बाहर आता है वो कितना बड़ा आएगा उसके ऊपर रहेगा कितने अंदर सो करना है. ऍक्च्युअली द सीड शुड बी सोन सुपरफिशियली. ऊपरही वरच्या वरच जर सीड जर्मिनेशनला घातले तर ते चांगलं. नंतर त्याची मुळं डीप जातात आणि मग रिपॉटिंग किंवा दुसऱ्या खड्ड्यात लावायला हरकत नाही. बट इट डिपेंड्स ऑन दी विच सीड्स यू आर सोइंग. प्रत्येक इथं यू नो देयर इज अ ट्रिमेंडस बायोडायवर्सिटी. सीड के बारे में बायोडायवर्सिटी है, लीव्स के बारे में है, रूट्स के बारे में है. सो जितने ज्यादा पौधों के बारे में जानो, हर एक पौधे के लिए एक्चुअली डिफरेंट केयर इज नीडेड. अलग तरह की केयर लेनी चाहिए. अलग सनलाइट लगता है, उसका शॉर्ट डे प्लांट, बहुत सारी चीजों के अंदर क्लासिफिकेशंस रहता है. तो वो सब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. वो पकड़ के जितना प्रैक्टिस करते चलो अपने गार्डन में, हर एक की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होगी. कोई टेरेस पे लगाएगा, कोई पॉट में लगाएगा, कोई जमीन पे लगाएगा, किसी के पास तो बहुत बड़ा बैकयार्ड होगा. यहाँ कोकण में तो बहुत सारे बैकयार्ड्स रहते हैं. सॉइल कैसी है वहां की, वो सब रहता है. अभी कल जो सेशन होने वाला है वो कैक्टाई के अंदर. एडेनियम के सीड आप सिंपल सैंड में भी डालो तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे इन दिनों में. सो वो अलग अलग रहेगा. दीपाली, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस सीड जर्मिनेशन? वो जो No, क्वेश्चन actually whatever you said, usually trees के seeds हम sow करते हैं तो at least 1 inch deeper चाहिए. अगर अपने vegetables वगैरह है तो it don't have to be so much deeper. ऐसे सिर्फ एक layer आप डाल सकते हैं उसमें. means you have to spread the seeds and उसके प्रमिला मैडम ने बताया है उस दिन भी. तो you can just sprinkle some, थोड़ा सा लेयर चाहिए. अगर बड़े ट्रीज के हैं तो 1 inch डीपर चाहिए. नॉट वेरी डीप एंड नॉट वेरी शैलो ऑल्सो. Hello, ma'am. Yes. I just wanted to ask about the potting mix of succulents, because many of the YouTube videos are recommending cinder in the potting mix. So instead of cinder, tomorrow, what can be the substitute? For succulents, tomorrow we are going to have the lecture on succulents. So that will be explained more properly tomorrow. Okay, fine. Okay. Dipali is there on our WhatsApp group. So you can ask. पूछ रहे हैं दीपाली का कॉन्टेक्ट नंबर. तो हमारे सब रिसोर्स पर्सन के नंबर्स आपको ग्रुप पे मिलते जाएंगे. यू कैन आस्क देम ऑन व्हाट्सएप इंडिविजुअली. लोग अपने अपने काम में, हम लोग तो ये सब एज अ
myself I am professor, but others may be busy with other work. मगर हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी जवाबों का हम इंडिविजुअली भी आंसर दे सकते हैं. And people are asking about the PowerPoint presentation ready-made also. Actually, PPT should not be shared directly. I would like to tell. लेकिन अगर रिसोर्स पर्सन राजी है तो दे कैन शेयर. ओके, वो जो उनका एडिटिंग होता है, खुद का काम होता है, वो डायरेक्टली शेयर नहीं करते लोग. लेकिन वी विल सी इफ पीपल आर रेडी टू शेयर. मेरी खुद की मैंने शेयर कर दी थी, लेकिन हर एक के बारे में वो नहीं हो सकता. वो लेक्चर जब शुरू है और यूट्यूब पे है, तब हम पॉज लेके स्क्रीनशॉट लेके वो पीपीटीज देख सकते हैं. दैट विल बी माय सजेशन. और अगर रिसोर्स पर्सन तैयार है तो वी विल डेफिनेटली वी विल शेयर दैट. मॅडम, दीपाली मॅडम साठी एक क्वेश्चन होता. नारळाच्या झाडावर पांढरी कीड लागून पानं काळं पडत चाललेली आहेत. ओके, त्याला सफिशियंट सनलाईट मिळतोय का सर? हो, सफिशियंट सनलाईट भरपूर आहे. केवढं आहे हाईट केवढी झाली आहे त्याची? जवळजवळ 10-12 फुटाच्या वरती गेलेली आहे. ओके ओके. तो युजली नारळाला खडे मीठ वगैरे घालून तुम्ही आळं करून खडे मीठ घालून बघा. असेच काहीतरी ऑप्शन्स हे म्हणजे सॉइल मधनच आपल्याला त्याला काहीतरी द्यायला लागतं. नारळाच्या झाडावर वर स्प्रे करणं खूप अवघड असतं. त्याच्यामुळे मे बी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मुळे पण असू शकतं ते. तरी पण ऍज पर माय नॉलेज जेट स्प्रे घेऊन त्याच्यावर गोमूत्र वगैरे आणि तुम्ही सांगितल्या प्रमाणात ताक स्प्रे केलेलं आहे. एकदा चांगलं वॉश करून बघा पहिल्यांदा ते. जर होत असेल फोर्सफुल पाणी तुम्ही पाईपने जर वॉश करू शकत असाल तर वॉश करून मग हे स्प्रे करा तुम्ही. ओके मॅडम, ओके, थँक्यू. हेलो हेलो मैम, we can use a dry kitchen material, dry kitchen waste as a compost. Yes, you can use. Yes. Okay. ग्राइंड करके यूज करें या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली ऑल्सो आप यूज कर सकते हैं. इट विल ऑटोमेटिकली गेट म्हणजे कंपोस्ट बन जाएगा उसका. लेकिन लुक्स वाइज इट डजंट लुक गुड, सो वी डोंट सजेस्ट डायरेक्टली टू पुट इनटू द सॉइल. ओके. और वो डिकम्पोजिशन जब होता है तब हीट बाहर पड़ती है. तो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसीजर वो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से हीट बाहर पड़ती है. तो वो पौधों के लिए कभी कभी हानिकारक रहता है. अगर वो अच्छे तरह से नैसर्गिक खेती बोलते हैं, नेचुरल एग्रीकल्चर, उसमें अच्छा सेट हो गया तो नो प्रॉब्लम. लेकिन डायरेक्टली डालने से अच्छा है कि सेपरेट कंपोस्ट करो. वो पूरा कंपोस्ट हो जाने के बाद और हाफ नेक जाने के बाद उसको पौधों को डालो. ओके मैम, ओके, थैंक यू. और कुछ? यस, लोटस सीड के बारे में कोई पूछ रहा है. प्रगीता, वी आर प्लानिंग वन सेशन ऑन एक्वाटिक प्लांट्स. पानी में लगाने वाले पौधों पे भी एक सेशन होने वाला है. उसके अंदर हम सीड्स के बारे में, लोटस सीड्स के बारे में दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे. थैंक यू मॅडम, थँक्यू. मॅडम, गोमूत्र किती जुनं वापरलं तर चालू शकतं? फ्रेश असेल तर जास्त चांगलं. ओके. 1 महिनाभर वगैरे ठेवू शकता तुम्ही. ओके. पण डायल्युटेड फॉर्म मध्ये वापरा. हो. त्याचं प्रमाण काय असायला पाहिजे मॅडम? तर साधारण एक 5 लिटरला तुम्ही एक असं किती पाव लिटर वगैरे वापरू शकता. ओके, थँक्यू मॅडम. त्याचं काय असं परफेक्ट हे नाहीये, रेशो नाहीये, पण तेवढं वापरू शकता तुम्ही. एक विचारायचं होतं, कढीपत्त्याला ना साधारण हिवाळ्यामध्ये अशी बारीक पांढरी अशी एक कीड येते आणि आफ्टर विंटर्स ती जाते आणि नुसते मग छान पालवी येते. तर असं काय होतं, दर हिवाळ्यात असं होतं. म्हणजे हा काही रोग आहे का, असं काही हे होतं? पण हे बऱ्याच वर्ष होत आहे माझ्या कढीपत्त्याला.
म्हणजे एक 5-6 वर्ष झाली हे असं चाललंय सायकल. ओके, मग तुम्ही कट करून टाकता का ते? हा, मग नवीन हिवाळ्यात पालवी कट फुटायच्या करून आधी? हा तेच पण त्याला काही करायचं, बाकी काय त्याला हे ओके. वेदर आणि कंडिशन्स मुळे पण होऊ शकेल ते, किंवा पेस्ट हा वगैरे काहीतरी फंगल इन्फेक्शन पण असू शकेल. हा आणि ते इट्स बेटर टू कट द लीव्ह. स्टेम्स कट केले की आणखीन जास्त चांगलं कडीपत्ता येतो. ओके. आणि म्हणजे काय होतंय त्या कडीपत्त्याचं त्याला असं काही ताक बीक घालतो आपण, म्हणतो ताक घालायचं, उरलेलं दही असं हो, घालू आंबट शकता घालायचं ते. असं म्हणतात. कंपोस्टिंगला तर आपण त्यांनी ताक होतं वगैरे घालतो तसंच. नाही, त्यानं व्हायची खूप प्रमाणात जर घालत असाल तर काहीतरी असू शकतं, पण एवढं काही ताकानं व्हायची काही गरज नाहीये. ओके. ताक आपण सॉइल साठीच घालतो, बॅक्टेरिया चांगले असतात त्याच्यात हा म्हणूनच घालतो. कंपोस्टिंग मध्ये पण बरेच जण ताक वापरतात, तर तसंच तुम्ही हो. डायरेक्ट ते सॉइल मध्ये घालता. आणि डायल्युटेड फॉर्म फोटो मध्ये घाला. काढला नाहीये मी तो, त्याचा फोटो काढला नाहीये. ओके. आता म्हणजे मॅडम म्हटल्या होत्या की फोटो पाठवा, पण आता माझ्याकडे तो फोटो ओके. नाहीये. मी आता पुढच्या वर्षी फोटो काढून नेक्स्ट ठेवीन. टाइम. येस. कॉमन आहे ते व्हाईट फ्लाईज आणि मावा जो असतो, दॅट इज हा कॉमन. व्हाईट फ्लाईज आणि ऍफिड्स आर देअर. तर ते हा थोडंसं हँड डेडिकेशन. गार्डन मध्ये आपण कुठलेही पेस्टिसाइड्स अवॉइडच करायचे, आणि थोडंसं गोमूत्र, थोडंसं दशपर्णी अर्क, ओके शिकेकाईचं पाणी, वेखंडाचं पाणी मारून बघायचं. 1-2 दिवसांनी मारायचं, मग ते जाऊ ओके शकेल. आणि हे कॉमन पेस्ट आहेत गार्डन मधले, फारसे वेगळे काय त्रासदायक नसतात. तेवढ्यासाठी कुठलं तरी विष आणून बाहेर बागेमध्ये अजिबात मारू नका. नाही, आपण आम्ही घरी वापरतच नाही, म्हणजे कुठलेही येस केमिकल येस वापरत नाही. सगळे नक्की ऑर्गॅनिक आणि हेच वापरतो, पण तरीही राईट. येत आहे म्हणून वीवर म्हणजे दशपर्णीला एक्सपायरी डेट वगैरे असते का? दशपर्णी कशाची? अर्क तो फ्रेशच वापरायचा असतो, त्याला नाही स्टोअर करायचं. ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्सची शेल्फ लाईफ खूप कमी असते. पेस्टिसाइड्स असू दे, फर्टिलायझर्स असू दे, त्याची शेल्फ लाईफ कमी असते. त्यामुळं जीवामृत पण एकदा तुम्ही केलं की 15 दिवसाच्या आत ते संपवायला लागतं. वर्मी वॉश 5-6 महिने राहू शकतं, पण 6 महिन्याच्या पेक्षा जास्त काही नसते कुठल्याही पेस्टिसाइड्सची शेल्फ लाईफ. जीवामृत कसं करायचं आणि घरी? ते दाखवणार आहे ना जीवामृत मॅडम, घरी. त्याचा एक ओके डेमो असणार आहे तुम्हाला नेक्स्ट सेशन ओके, मध्ये. थँक्यू. हॅलो मॅडम, थँक्यू स्पायडर साठी थँक्यू, काय खूप छान करता येईल? झालंय लेक्चर. थँक्यू मॅडम, स्पायडर्स साठी काय करता येईल? बागेमध्ये खूपच स्पायडर्स आहेत. फोर्सफुली पाण्यानंच तुम्ही ते धुवून टाकलेलेच जास्त करून चांगले. स्पायडर झाडं खातात. हो, आणि दरवेळी मग ते स्पायडरचं स्प्रे थोडासा मी स्प्रे केला, तेवढ्यापुरते मरून परत स्पायडर्स येतात. काहीतरी ती इकोसिस्टीम तशी सेट झालेली असती. आपणच हा. प्रयोग करून बघायचे, आपल्या बागेत ऊन किती येतंय आणि कशामुळे येतात ते. युजली पाणी घालताना फोर्सफुली पाणी घालून ते डिस्लॉज करून टाका तुम्ही. हॅलो दीपाली, मला एक विचारायचं होतं की आता उन्हाळ्याचे दिवस आलेत, पाणी थोडंसं बागेला कमी पडतं, म्हणजे बोरला आमच्या पाणी कमी होतं, तर लॉन आहे, तर मग त्याचे म्हणजे ते खूप ड्राय होऊन जातं, नाही तर पाणी नाही मिळालं तर त्याच्यासाठी लॉन वाचवण्यासाठी आपण काही करू शकतो का? म्हणजे जर इन केस पाणी खूप कमी पडलं त्याला, तर पावसाळ्यापर्यंत लॉन वाचवण्यासाठी त्याला शेडनेट वगैरे घालावं का, काय करावं लॉनसाठी? शेडनेट एक ऑप्शन होऊ शकतो, पण खूप मोठा असेल तर दॅट इज कसं म्हणजे घालणार तुम्ही? ऍक्च्युली पाणीच नेसेसरी आहे. पॉसिबल असेल तर वॉटर हार्वेस्टिंग वगैरे तुम्हाला काही पावसाळ्यात करून ठेवता येत असेल तर मग दॅट कॅन बी वन. हे तुमच्या गार्डन मध्ये जर वॉटर हार्वेस्टिंग तुम्ही करून म्हणजे स्टोअर करून ठेवत असाल पाणी, तर दॅट विल बी मोर, दॅट इज ऍडवाइसेबल. अगदी संध्याकाळी घालायचं पाणी, म्हणजे इव्हॅपोरेट होणार नाही. हे लागणार. पाणी पडलं ना की त्याचं खाली निघून जातं, म्हणजे निघून जायलाही पाहिजे, पण काही वेळा ते असं वाटतं की ड्रेन होतंय सगळं. असं का होत असेल? ड्रेनेज होल्स खूप मोठी आहेत का पॉटची? नाहीये, तसं नाहीये, म्हणजे प्रॉपर कुंडी व्यवस्थित. मग देन डोंट वरी, मग ते व्यवस्थित हे होत असेल, मग काही प्रॉब्लेम नाही. लोम सॉइल जशी तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आपण ब्रिक्सचा चुरा तुम्ही घातलेला असेल, वर्मी कॉम्पोस्ट घातलेला असेल, तर नो प्रॉब्लेम, ते वाहून जाऊ देत, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. हॅलो, उन्हाळ्यात थोडी खाली प्लेट ठेवून द्यायची. हॅलो
मला एक विचारायचं होतं, आपल्या कंपोस्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही काही वेगवेगळे किडे दिसतात, तर त्यातले युजफुल कुठले आहेत आणि हार्मफुल कुठले आहेत, तसं काही कळू शकेल का? कारण असे बारीक बारीक व्हाईट कलरचे एक असतात आणि साधारण आपल्या पेराच्या हाफ मध्ये असे किडे असतात त्या कंपोस्ट मध्ये, तर ते किडे कुठले ऍक्च्युली न झालेले बरे कॉम्पोस्ट मध्ये, कुठलेच किडे अर्थवर्म सोडून दुसरे कुठले किडे नाही, होणे वर्मी कंपोस्ट नाही, आपलं नॉर्मल आपलं नाही. कल्चर तरी घालून केले. ह्याच्यात जरी असलं तरी अर्थवर्म्स असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण बाकीचे किडे होणं इट्स नॉट गुड. काहीतरी अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होतंय असा त्याचा अर्थ, काहीतरी चुकतंय असं पण आहे थोडंसं. आणि झाले थोडेफार किडे तर फार घाबरायचं नाही, थोडीशी प्रॅक्टिस बदलून बघायची, थोडं एरेशन वाढवायचं, थोडं ढवळून बघायचं, थोडा ड्राय मॅटर घालायचा, थोडी सॉइल घालायची. पण किडे झाले म्हणून घाबरू नका, ते होत राहतं. जोपर्यंत तुमचा चांगला त्याच्यामध्ये हात बसत नाही म्हणतो आपण, प्रॅक्टिस होत नाही, तोपर्यंत हे छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स येत असतात. ते बंद करायचं नाही, पण आपण त्याच्यावर सोल्युशन काढत राहायचं. येस येस, थँक्यू. गोगल काय करायचं? शार्प सँड म्हणजे व्हॉट शार्प सँड मीन्स असं कोणीतरी विचारलेलं आहे. तर शार्प सँड म्हणजे सँड युजली गुळगुळीत वगैरे असते, तशी नको, जराशी अशी खरखरीत असलेली सँड असते, दॅट इज शार्प सँड. हेलो मैम. यस. ये आपने जो बताया कि जो प्लांट्स को सन में है उनको थोड़ी शेड में ले जाने, जो शेड में है उनको थोड़ा सन में ले जाने, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए. तो अगर वो जमीन में है तो यू कैन अरेंज, अगर धूप और शेड ये जो प्रॉब्लम है तो जमीन में है तो अगर आउटडोर प्लांट है और आपने शेड में लगाया है तो उसको रिमूव करके शिफ्ट करना ही बेहतर है. अच्छा. और मैम ये जो कौन सा प्लांट है आपका? नहीं, मैंने वैसे तो धूप के ही लगाए हुए. ओके. बाहर गार्डन में. हाँ. मगर जनरल में पूछ रहे थे. अच्छा. और एक प्रॉब्लम आती है मैम, लास्ट में जो सेशन क्वेश्चन आंसर्स का होता है वो मोस्टली मराठी में होता है. तो अगर आप लोग आंसर हिंदी या इंग्लिश में दें तो बाकी पार्टिसिपेंट्स भी समझ जाए और सेम क्वेश्चंस उनको वापस पुट ना करने पड़े. यस. और उनको ये भी फील नहीं हो कि टाइम बहुत वेस्ट हो रही है हमारी. राइट. दैट विल बी कंसिडर्ड. थैंक यू. थैंक यू मैम. हॅलो मॅम. येस. आता ताकाबद्दल तुम्ही सांगितलं, आपण ते सरसकट सगळ्या झाडांना घालू शकतो ताक, की फक्त ज्यांचा पीएच हाय पीएच लागणाऱ्या झाडांना घालायचं? हा, काही गरज नाही. तुम्ही ते कॉम्पोस्ट मध्ये घातलात तर दॅट विल बी मोर हे. पण कढीपत्त्याला युजली खूप जण घालतात, म्हणून सॉइल मध्ये डायरेक्ट डायल्युटेड फॉर्म मध्ये घातलं सगळीकडे तरी चालेल. पण लेट इट बी इन द डायल्युटेड फॉर्म. कधीतरी महिन्यातनं घालायचं, फार नाही होत सारखं नाही. ओके. मॅडम, हे जे आपण ताक घालतो, when we add buttermilk, is it for the bacteria or is it for the pH? Both. Bacterial activity. बैक्टीरियल एक्टिविटी कंपोस्ट में भी हम जब डालते हैं तो दैट इज फॉर बैक्टीरियल एक्टिविटी, बट इफ यू इंक्रीज द प्रोपोर्शन तो दैट कैन इंक्रीज द पीएच वैल्यू आल्सो. ज्यादा एसिडिक भी नहीं बनाना है. हेलो. थैंक यू मैम. Okay. I think that we will stop the session. Most of you have got answers. आप बहुत सारे questions भी पूछे, interactive भी हो गया है. I hope all of you are enjoying it. बहुत अच्छे हैं. पर्सनल पे भी हम लोगों को मैसेजेस आते हैं, अप्रिशिएशंस आते हैं. और दीपाली ने ये 2 सेशंस लिए है, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत ली है उसके ऊपर, और पूरा पिक्चर मैक्सिमम पॉइंट्स आर कवर्ड. इसके बाद में उसमें से भी अलग अलग स्पेसिफिक डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कशंस होंगे. कल का सेशन रहेगा स्पेशली फॉर कैक्टाई एंड सकुलेंट्स. कैक्टाई सकुलेंट के बारे में दीपाली ने आइडिया दिए हम लोगों को. अब उसका डिटेलिंग हो जाएगा कल. उसमें उस पे काम करने वाले जो लोग हैं बहुत सारे सालों से, वो आपसे मिलने आएंगे ये मीट पे. और
उसमें से आप अपना ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैक्सिमम लोग जो है 125 लोग दे जॉइन अस ऑन गूगल मीट। बाकी के लोग टास्क भी पूरा करते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं और ज्वाइन हो जाते हैं। पर्सनल पे हम लोगों को फीडबैक भी देते हैं। थैंक यू फॉर दैट। और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं आया। हेलो, पिछले सैटरडे का लेक्चर का रिकॉर्ड लिंक नहीं आई है ग्रुप पे। आई है ना, भेजिए। फिर से भेजते भी रहते हैं। अभी वो ये 2 सेशन होने के बाद फिर से सारे लिंक्स डाल देते हैं हम। ओके, सो ऑल द 28 लिंक्स विल बी अगेन एंड अगेन गिवन टू यू। पिछली भी दे दी थी, आप चेक कर लीजिए। अभी ये 2 सेशन होने के बाद फिर से मिलेगी। ओके ओके, थैंक यू। शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, सॉरी। अच्छा मैम, ये जितने सेशंस हो रहे हैं इनके नोट्स बाद में दिए जाएंगे। अब आप लोगों को खुद को बनाने हैं अपने नोट्स। अब बैठते वक्त डायरी लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए। एक्चुअली हम सुनते समय नहीं लिख सकते हैं। So those are the school strategies। हम लोगों को फिर से रिवाइज करना है और नोट्स भी देने वाले हैं हम। पॉइंट्स जो हम निकालते हैं, हमारी एक स्टूडेंट निकालती है, वो भी देते रहेंगे हम। ओके, so that will be considered। तो हुआ है उसका, हाँ, हम लोगों ने निकाले हुए, जो हम लोगों ने टीम में अलॉट किए, उन लोगों के निकाले हुए पॉइंट्स भी डाल देंगे, करिश्मा डाल देगी। थैंक यू। You can take screenshots. You can take screenshot. हाँ, you can, that is also good option। आप देखते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Yes, एक्चुअली मेरे को वो नहीं आता है। वो सब सीखना है थोड़ा थोड़ा हम लोगों को। Okay, Alpana madam has asked snails के लिए solution। Alpana madam, I've already said hand pick करके आप उसको destroy कर सकते हैं। Otherwise put salt on it। नहीं तो slug के pellets मिल जाते हैं। You can keep those slug pellets in your garden snails के लिए। वो एकोरस जो है स्वीट फ्लैग, वो रिपेल कर देता है, वो भी ट्राई करके देखिए। वेखंड जिसको बोलते हैं मराठी में, स्वीट फ्लैग, उसका पाउडर डालो तो रिपेल हो जाती है वो। दैट कैन बी ऑर्गेनिक सोल्यूशन, यू कैन ट्राई। ओके, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you. Nice session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Very nice. Nice session. Thank you. Thank you.